रिजल्ट हाँ मुझे याद है मैडम। अच्छा अच्छा ना कोई कंफ्यूजन ना आ जाए। वैसे मैंने लैपटॉप मेरे को याद है एकदम। ठीक है ठीक है ठीक है। So this time average score has been very low actually compared to other times. अच्छा I think इसमें overall it is डिफिकल्ट था around क्वेश्चन। 60. So I think exam was difficult. Yes, हाँ I could एग्जाम make वाज out. डिफिकल्ट यस। I could make out that exam was difficult. I'm just switching off my video. So exam was difficult for sure, but still we have our performers who have outperformed people. मतलब जनरली क्या होता है कि टॉप पोजीशन पे टॉप 3 के अंदर 6-7 लोग आते हैं, but this time it's not like that. You know, we have one person on third position, one person on second position, and one person on first position. In fact, ज्यादा top लोग 7 because एक नंबर के भी क्वेश्चन थे इस बार। हाँ एक नंबर के थे यस। तो टॉप 7 पोजीशंस की अगर मैं बात करूं, 7 people have scored more than 80 and above. There 7 people. And departmental wise, if I talk, you know, then on third position we have eco हो रहा है। एक On सेकंड third, okay, on third position we have government advisory team with 66% average score. And on second position we have credit monitoring team with 68% marks. ऑफिस आ रहा हूँ मैं बेटा, ऑफिस आना है। अभी निकले नहीं ऑफिस के लिए। On top position we have that team with 69% marks. You guys can hear me, right? Yeah, sir. You are audible, clear, sir. Clearly, sir. Okay, very good. So, on now coming to individual scores, we have. I want to take some names which are worth mentioning before I declare the toppers. So they are Pushmita, Akhilesh, Supriya, and Ashish Gupta. So they are the people who are more than 80 and 80 and above. And the third position we have with 85 marks. He is from that team. Can anybody guess? Daily that team? Rekha ma'am. Any guesses? Hello? पवन जी। कौन बोला? सर नितिन। हाँ ठीक है एकदम। पवन गुप्ता is on third position. That's right. On second position. वो कौन सी डिवीजन से है? कौन? डिवीजन कौन सा है सेकंड पोजीशन? सेकंड पोजीशन का डिवीजन बता दूंगा तो नाम पता लग जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ, राजेंद्र के भी मार्क्स 80 and above है। राजेंद्र is also there. अरे वाह। So but second position पे unfortunately राजेंद्र नहीं है, but कोई फीमेल ही है सेकंड पे। अभी तो गैस कर सकते हो, बहुत कंसिस्टेंटली पोजीशन टॉप पोजीशंस ले रहे हैं वो। सुप्रिया नहीं कर रहे हैं आप। अरे बहुत आसान है यार। निधि। कंसिस्टेंटली टॉप पोजीशन में कौन सी फीमेल आ रही है? अर्पिता। हाँ अर्पिता नहीं है। रेखा मैम। यस रेखा मैम, राइट। Congratulations, Rekha ma'am. थैंक यू। Congratulations. Now coming to top position. Now again we have a person who stood first, but then again he was not coming in top ranks, although he was performing very well. So that now it's very easy to guess who could that person be.
टॉप पे नहीं आ रहा था. पवन लोहिया. He is also one of our gurus. सुदर्शन, No, one of our gurus. मनीष जोशी, अभिषेक. Manish Joshi sir. yes, Manish Joshi again. He has Joshi. topped with 87 marks. Yes, Very good. Manish ji, congratulations. congratulations, all the winners, all the Thank you, sir. toppers. Thank you. Thank you, sir. And there are others also who have performed well. I'll share the result very soon over WhatsApp. And all the best for today's class. Happy learning. राहुल जी से किसी की बात हुई क्या? आप फिर मेका मैम आप स्टार्ट कर लीजिए. हाँ, मैं एलआरडी का स्टार्ट कर लेती हूँ. आप कर लीजिए जब तक कोई एक आदमी मेरे से- ड्यूटी ले ले. कोई कौन लेगा, कौन बात करेगा? स्क्रीन शेयर हो जाएगा ना मुझसे, यहाँ से मैं करूंगी तो. वो मुझे है. लोकेश को बोल दो, कर देगा. लोकेश कर देगा आपको अलाउ. लोकेश को आप बोल देंगे, वो होस्ट बना देगा आपको. अच्छा, लोकेश, एक मिनट. लोकेश है क्या लाइन पर? होना चाहिए. लाइन शेयर करके गायब थोड़ी हो जाएगा. यस सर. लोकेश, यू देयर? यस सर. ये आप रेखा मैम को होस्ट बना दीजिए. स्क्रीन शेयर करनी है उनको. श्योर सर. श्योर. और राहुल को कोई प्लीज फोन करो भाई. मैंने अभी लगाया था, उनका इंगेज आ रहा है. अच्छा, आप छोड़ दीजिए, आप तो पढ़ाइए. मैं कॉल कर रहा हूँ. ठीक है मैम, आप स्टार्ट करिए. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning ma'am. आ गए हमारे Morning, पास. ma'am. कितने लोग आ गए? 31. 31. अच्छा. It is very low actually. हम्म. Anyways, we'll talk about this later, but you can start. So today we will discuss about LRD loan. So रेखा मैम anyone? यू कैन शेयर. शेयर कर सकते हैं आप अभी. हाँ, ठीक है, ठीक है. तो LRD लोन, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर. तो LRD लोन क्या होता है, कोई बता सकता है? हेलो. Ma'am, Ma'am. we are discounting. Ma'am, when we have a long-term lease loan, this rent agreement on a commercial property, then we can discount that and we can get an upfront payment. That is. So you're saying rightly. Basically, it is a kind of term loan which is being sanctioned by banks, and this term loan is known as lease rental discounting, because normally it is being given against discounting of rental income of the borrower over a period of time. So basically, in this case, whatever income is coming, that goes directly in the escrow account which is being opened with the bank, and then bank takes out its like principal and interest installment, and which is approximately 80 to 90% of the rental income. That I will discuss in the eligibility part. How do we calculate the eligibility? And then like rest 5-10%, whatever is being left, that is being then given to the borrower after the payment of interest and the principal amount. So it is considered a very like a safest or safer mode of term loan for the bank, because here income is more or less fixed, and in the projection there is not much like difference. Whatever is being the agreement is there, rental agreement is there. On the basis of the rental agreement, you can check what will be the rental income over the period of time, and normally it is being discounted at the rate of interest which is being charged by the bank. So now I will discuss basic like terms and conditions. 1 second. So first I will discuss the key criteria for eligibility. Can you see the screen now? Hello? Yes, we can see.
Huh. So what are the key criteria for eligibility and how do we calculate the loan eligibility, that I will discuss. So as I told you that basically it is a discounting of the rental income. So main criteria is the NPV of the rental income or whatever other incomes if it is coming, and if we are taking those income also into consideration, like maintenance income or any other income is there, and rental income. So and we have to calculate the NPV of the rental and other income. That is one, whatever is the NPV is there. So on the basis of that, we basically calculate the term loan amount. Then I will discuss how do we calculate the NPV and how do we calculate the loan eligibility. So I think I will first discuss how will we calculate. Do we deduct something, ma'am, from this income? Yeah, we deduct the TDS. So whatever is coming, like, can you see this Excel sheet? Is it coming? Hello? Yes, Excel is there. Excel is there. So just I have assumed, see, for example, I am getting 1 crore of rental income per month. So first year, my rental income is 12 crores. Then there is an I'm sorry, I escalation. am unable to see the Excel file. I am seeing the Word file which you were. Here, ma'am. Same. No Excel file is visible, Okay, ma'am. 1 second. If I have to go again. First, you have to unshare it and then again share the Excel file, ma'am. I think Achha, this okay. okay. Stop share करिए फिर share करिए. Yeah, I'm not seeing the Excel file. I'm sorry. हाँ 1 second. ये Zoom में वापस कैसे जाएगा? Zoom में नहीं जा रहा है ये, वापस वही Excel पे Stop जा share करिए, ma'am. ऊपर देखिए मैम, स्टॉप शेयर लिखा होगा. जूम में स्टॉप शेयर करके लिखा होगा. रेड कलर का बटन होगा, ग्रीन बटन के बगल में. अभी Zoom के अंदर नहीं जा रहा है, अभी Zoom में नहीं जा रहा है ये. जूम को क्लिक करिए मैम. जूम को क्लिक करिए. जूम का आइकॉन होगा आपके लैपटॉप पर. हाँ Zoom का तो है आइकॉन, लेकिन उसमें देखिए कहीं माइनस करके करा होगा, शॉर्ट हो गया होगा. हाँ 1 second. नहीं Zoom मेरा राइट साइड में आ रहा है वीडियोस. हाँ तो मैम वो जो ऊपर, उसी में ऊपर देखिए ना, आपके ऊपर दिखा होगा एक शेयरिंग स्क्रीन, एंड उसके राइट में कॉर्नर थोड़ा सा राइट में देखोगे स्टॉप शेयर. अच्छा, न्यू शेयर. रेड कलर से. 1 second. ये देखना अभी आया क्या? अभी शेयर हुआ? अब आ गया मैम. अब आ गया. एक्सेल फाइल आ गया मैम. So now can you see this? This is my rental income. For example, my rental income is 1 crore every month. And there is a clause in the agreement that there will be an escalation after every 3 years of 15%. So basically this I have calculated my, and I have applied for, and my rental agreement is for the tenure of 12 years. So how do we calculate the loan eligibility? So I have, see, first year my rental income will be 12 crores. Second year again it is 12 crores. Like that I have plotted rental income over the period of years. And TDS is at the rate of 10%. TDS 10%, that means we have to deduct the TDS amount because that will not come in the escrow account. So whatever comes, that we have to take into account. So that is the net of TDS. My rental income is, over a period of time, it is 161 crores. And if I calculate the NPV for this rental income, my NPV is coming 92 crores. So this is my, basically the NPV is the main loan eligibility. Now after that, some What is the discount rate, ma'am? How you? I have taken 9% approximately. Okay. NPV at 9% discounting. Why we are taking 9%? Because we are assuming that we will be able to borrow at 9%, or what is the logic? This is the bank rate of interest. Whatever the bank is going to charge the ROI, and on that ROI we have to discount it. Okay. So if it is 9, so we'll discount it at 9. If it is 9.5, then we have to discount it by 9.5. But more or less, I have taken 9 because approximately at this rate of interest, bank normally charge 9 plus minus. So, and this is my NPV 92 crores.
Now, after some banks, they agree to give it the exact amount what the NPV is coming, but some banks, they want to take the margin on NPV also. So sometimes they take like 10% margin on NPV. So after deducting the 10% of NPV margin, then the loan eligibility comes out at 83 crores. This is one way of calculating the loan eligibility. But when we propose to banks, What is the period you have taken? 12 years. So is it the 12-year lease is there, or how 12-year is decided? So normally that I will come again. I will finish this another portion of loan eligibility. Then I will tell you how do we take the years. Okay, ma'am. Then another formula by which bank normally calculate the loan eligibility, and that is the gross rental income. So here the gross rental net of TDS is coming 161.79 crore over the period of years which we are considering as a tenor. And out of which that gross rental, they deduct 45% margin. Most of the banks, they deduct 45% margin as a margin. And the remaining 55% is your loan eligibility. No, sorry, I forgot this security deposit. If the client has taken, if the borrower has taken any security deposit in the beginning from the tenant, so that security deposit also has to be deducted from this gross rental. So gross rental is 161 crores. Out of this gross rental, I have deducted 45% of the margin, that is 72 crores. Then suppose they have taken 3 months of rental income as a security deposit. That was 3 crores. So I have to deduct this 3 crores also. And then after deducting these both figures, whatever is the balance, that is my loan eligibility. So bank says that NPV or this method of calculating the loan eligibility, whichever is lower, I will give that. I have one question, Rekha ma'am. Huh? When we are doing NPV, then how do we consider the security deposit? Exactly. In NPV, we don't consider security deposit. In NPV, but ultimately you have to repay that at the end of the lease period, na? At the end of the lease period, you don't have to repay, but naturally those 3 months rental will not come. But in NPV, it is the same thing. Whether it comes, yeah, it's the same thing. But yes. In NPV we don't consider. But in this like a margin, normally in the bank format, since they have the security deposit thing, so normally they deduct it. I will tell you again why we don't calculate, because normally when we are going for LRD loan with the banks, mostly it is like rollover loan from one bank to the other bank, and most of the time your discounting period what we have considered 12 years, 15 years or 10 years. Normally this lease period is not that much, like remaining lease period, what we call remaining tenure of the lease is not 12 years or 15 years or 12 years, what we are proposing to the bank. So normally we propose that it is an auto renewal, and we assume that if this tenant goes, some other tenant will come. So and the location is very good, and this has been the history in the past that whenever the tenants have gone, the other tenants have come. So normally we make our auto renewal justification thing, and we consider 12 years tenure. But in case of like calculating by the bank's method, they insist, no, you have to reduce the security deposit. So there we reduce. But in NPV method, normally they don't insist on removing the security deposit. And second, one more question that I would like to just understand. If it is, there is a 10% increase in every 3 years, so do the security deposit also increases correspondingly at the time of increase? No. Security deposit does not increase. Security deposit is paid once in the beginning, whatever they have decided, 3 months rental or 6 months rental. And after that, it is being just kept like that. And normally it is adjusted towards the end of the tenure. Now, if in case of automatic renewal, if it is a renewal, if it is again renewed, suppose your lease has been expired and again it has been renewed. Suppose that time they take. My point is ki if there is a renewal, or we are thinking that some other borrower or some other lessee will come,
In that case, whatever will be the current rent, assumed rent, I will say, at Yes, that yes. point in time, to that extent, the deposit will be there. Yes, yes. So we does not take into factor any increase or decrease in security Okay. deposit. We does Fine, not. ma'am. Rekha ma'am, I have a question. Mm-hmm. Like, suppose after 3 years when the lease rentals are getting escalated, and if there is a clause in These the rentals are agreement getting escalated, okay. and there is a clause in the lease agreement, that the security deposit needs to be revised as per the escalated amount. Mm-hmm. So in that case, what will be the adjustment for the security value, like security deposit? Adjustment value in the sense, like if it is suppose increasing by say suppose earlier they had paid 1 crore, now they have Right. to like pay 1 crore 15 lakhs. So 15 Right. lakhs is additional that they have to pay. So Yeah. so in that case, nothing here we do in the calculation. Only thing is that another like 15 lakhs, whatever they will pay, that will Mhm. come in the escrow account of the bank only. Okay. So like But we don't since need to reduce it, the security deposit amount by increasing it. no, here we reduce only whatever has come Okay. at the time of making the calculation. And will bank fund any account in which the term loans are unregistered? That depends from bank to bank, but mostly banks they ask for the registered lease deeds. At least like if there are suppose 80% of the lease deeds should be registered. Like 20-25% they normally say okay, it's okay, like we can take the waiver. But if Like all if the lease yeah. deeds are not registered, then they are very apprehensive. They normally they don't want to, like for them this proposal is not so good. They make a condition that okay, once we sanction, then you have to get it registered. Prior to disbursement. Yeah, prior to disbursement, or maybe even if we disburse, suppose there is like in bank, it depends from bank to bank. Sometimes the bank can give you 6 months time to get all the lease deeds registered within 6 months, or maybe at least 70% of the lease deeds you can get registered within 1 year or 6 months. But again, most of the banks, they try to like they make it a pre-disbursement condition. Okay. But we can convince that if you can give us some time. If depends on the like kind of tenants or kind of number of tenants, Yeah. what kind of like you are property or mortgaging. If that huge number of tenants, then you can take some time. You can ask some time from the bank. Mhm. Rekha And ji, getting only the anchor deeds registered, will it do? Like Yeah, so that's what, if the rental income is suppose 1 crore and I'm saying okay, you can like I'm registering 75% of the value of the rental yeah, income. majority is covered by the anchor. Majority is covered, then Yeah. they sometimes they agree with that. They agree with that. Thank you. रेखा जी, I have a question. इसमें जो TDS हम लोगों का डिडक्ट हो रहा है, is there any clause कि अगर कंपनी का कंपनी लेवल पे प्रॉफिट नहीं है, like तब प्रॉफिट नहीं है, तो जो TDS अमाउंट है वो बैंक बाद में रिकवर करेगा? क्योंकि इसके अंदर में एक ये होता है कि अगर सपोज जैसे TDS अभी हमने 10% तो एक बेसिक रेट है दैट वी हैव अज्यूम्ड हियर. सपोज अगर कंपनी इज लाइक इन नो प्रॉफिट एंड अगर उनका TDS अगर सपोज एप्लीकेबल कम है और उनके लिए मतलब कम लग रहा है, तो इन दैट केस नॉर्मली कंपनी अप्लाइज फॉर लो TDS सर्टिफिकेट from income tax authority and they get it for 1 year. So in that case, suppose the company has got the low TDS, like they apply to income tax authority कि हमारा तो income tax applicable है नहीं, तो हमें इतना TDS क्यों आप मत काटिए, हमारे cash flow में problem हो जाती है. So they apply for it and accordingly like जो भी उनको TDS rate मिला, suppose 1% का उनको certificate मिल गया है, तो 1% certificate मिल गया है, तो that is applicable only for 1 year. So now what happens here, when we are like doing the projections, financial projections of the company, in that financial projections, what is our P&L, profit and loss, what we are showing. अगर हमारा उसके अंदर कुछ और भी अदर इनकम अदर लॉसेस है या अदर बिजनेस है जिसके कारण वो मतलब आगे अगर TDS नहीं लगेगा, हमें लगता है कि टैक्स नहीं लगेगा, then accordingly we have to give the solid reason behind it. अगर फ्यूचर में भी अगर we are assuming कि TDS rate will be 1%, so what will be the logic behind it, whether it is coming as per our projection, और अगर हमारे पास अभी lower TDS का है तो we can take it for 1 or 2 years, assuming for 1-2 years, and then later on it will increase as per normal. So it all depends on the financial projection.
and company has to apply for the low TDS certificate. In the beginning only we can't say that it will be like 1% if we don't have the lower TDS certificate. So in projection you mean to say कि हम अगर loan eligibility हम लोगों को बढ़ाना है तो we can take 1% giving the अगर आपका प्रोजेक्शन में अगर आपका टैक्स नहीं लग रहा और प्रोजेक्शन में आपका लॉस है, बट नॉर्मली प्रोजेक्शन में हम लॉस दिखा नहीं पाते, बिकॉज अगर प्रोजेक्शन में भी लॉस दिखाएंगे तो कंपनी मतलब बोलेंगे कि फाइनेंशियल्स आपके सही नहीं है, रेटिंग खराब हो गई। पर अगर आपके फाइनेंशियल्स आपके कुछ ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर हमारा था कि जैसे SEZ में था और वहां पे उनको काफी सारे नहीं पहले के कुछ लॉस आ रहे थे तो उनका हमने वो लॉस एडजस्ट कर दिया, या उनको टैक्स ही नहीं देना है, उस टाइप का भी था कि उनको टैक्स लगेगा ही नहीं, उनका TDS नहीं कट रहा था। हालांकि वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का एडजस्टमेंट सेट ऑफ लॉसेस जो है उसकी वजह से हाँ, और अगर कोई पास्ट लॉसेस बहुत है जिसका आपका फ्यूचर में आपको टैक्स का जो भी है कैलकुलेशन आपने करा हुआ है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में, इफ यू आर नॉट सपोज्ड टू पे एनी टैक्स देन यू कैन अज्यूम लो TDS। यस, क्लियर। Another thing here I have not shown, another income which is there is maintenance income. Normally जब tenants को हम देते हैं तो उनसे मेंटेनेंस रेंट ये लेते हैं पर स्क्वायर फीट, नॉर्मली उसका भी एक एग्रीमेंट होता है। तो इन जनरल देखा गया है कि अगर हम लोग जितना भी चार्ज कर रहे हैं मेंटेनेंस का लोगों से और वॉट एवर वी आर स्पेंडिंग, इफ देयर इज अ गैप, जैसे कितनी बार ये होता है कि अगर आपने अगर 20 रुपया लिया है और आपका शायद 16 रुपया ही खर्च हो रहा है पर स्क्वायर फीट, तो अगर 20% आपका अगर बच रहा है हर साल तो आप वो इनकम भी इसमें ले सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, बट यू हैव टू जस्टिफाई दैट कि आपका इतना ही खर्चा होता है और इतना ही आपका मेंटेनेंस अग्रीमेंट से मेंटेनेंस इनकम तो आपका एस्टैब्लिश हो गया, बिकॉज यू आर टेकिंग दैट मच मेंटेनेंस इनकम दैट इज कमिंग एज पर द बैंक स्टेटमेंट, बट एक्सपेंडिचर यू हैव टू जस्टिफाई। तो नॉर्मली एक्सपेंडिचर जस्टिफाई करने के लिए 2-3 तरीके हैं। तो एक तो अगर कंपनी ये प्रोजेक्ट अगर SPV में है तो SPV में आपकी इसकी बैलेंस शीट चेक कर सकते हो लास्ट 2-3 साल की बैलेंस शीट में कि हाउ मच इज द एक्सपेंडिचर दैट इज बीइंग शोन इन द बैलेंस शीट इन द P&L। एक्सपेंसेस में अगर इतना एक्सपेंडिचर आ रहा है दैट इज वेरी विजिबल कि हाँ मेंटेनेंस के लिए इतना एक्सपेंडिचर है, एंड दैट कम्स टू अप्रोक्सीमेटली, सपोज आई एम रिसीविंग 1 crore ऑफ मेंटेनेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अप्रोक्सीमेटली 80 lakhs. So if it is established by balance sheet, you can take 20 lakhs as another additional income. So that can be added to this rental income. But मैम अगर वो SPV में नहीं है तो फिर हम लोग फिर कैसे आइडेंटिफाई फिर करेंगे? हम कोई अगर या तो फिर आपकी क्या आ रहा है? हाँ, फिर आप एक्सपेंडिचर के लिए आप कुछ आप CA सर्टिफिकेट बनवा सकते हो कि मेरा एक्सपेंडिचर इतना लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना है, या फिर कुछ बाइफरकेट करके कुछ आइटम्स करके कि इतना आ रहा है, बट बैलेंस शीट में आपके वो आना चाहिए कि बैलेंस शीट में एटलीस्ट एक्सपेंडिचर का अगर आपका सपोज कि कोई और बिजनेस है या कोई बहुत सारी रेंटल इनकम की प्रॉपर्टीज है तब तो आपका वो बाइफरकेट नहीं हो पाता है, बट अदरवाइज ओवरऑल बाइफरकेट हो जाएगा कि ठीक है आपके यहाँ पे अगर 5 प्रॉपर्टीज है तो सबका नेचर और ट्रेंड तो एक ही होगा कि अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो 80 रुपए खर्च हो रहे हैं, अगर सारे मेंटेनेंस इनकम अगर अलग अलग हैं। नहीं तो आपको CA सर्टिफिकेट दिलाना पड़ेगा, उसके अंदर CA सर्टिफिकेट से हो जाएगा कि चलो मेरा इतना खर्चा हो रहा है इसके अंदर में और इतना इनकम आ रहा है, इनकम तो एस्टैब्लिश है बट एक्सपेंडिचर मेरा इतना है, वो CA सर्टिफिकेट से आप करवा सकते हो। और मैम जैसे कीपिंग इन माइंड द करंट सिनेरियो, जैसे कोविड के टाइम पे अभी जैसे मॉल वगैरह तो अब रिसेंटली खुलने स्टार्ट हुए हैं फेज वाइज, तो इतने महीने से इनका लीज रेंटल तो इनको मतलब मिला नहीं है मॉल वालों को, उसके अंदर में प्रॉब्लम है ही अभी इसमें तो मॉनिटोरियम सबको मिला ही है। हाँ मॉनिटोरियम मिल रहा है, फिर जैसे कई जगह पे रीनेगोशिएशन चल रहे हैं तो उसमें उन लोगों ने वो कई जन कह रहे हैं कि जैसे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट से आप उसको एडजस्ट कर लो, तो अगर मान लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट से ये लीज रेंटल्स अगर एडजस्ट होते हैं तो आज के डेट में तो मॉल के पास में भी कोई मतलब वो है नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो इनके पास में कुछ बचेगा नहीं, कोई लायबिलिटी खड़ी नहीं रहेगी बुक में। तो अब मान लीजिए अगर वो लोग कोई किसी नए फंडिंग के लिए जाते हैं तो इस केस में क्या इन लोगों को फिर आगे चल के फिर से क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट क्लाइंट से मंगाना पड़ेगा अपने टेनेंट से, या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट इस एलिजिबिलिटी में लेस? अगर ये लोग उसी क्लाइंट उसी बोरोवर से अगर उसी टेनेंट से अगर बात कर रहे हैं और वही टेनेंट इनके पास आ रहा है, हाँ टेनेंट सेम है।
और उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट तो नेचुरली अगर वो वापस इज रेडी टू पे एंड इज रेडी टू मतलब तो फिर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वो वापस उससे लेंगे, बट मे बी दे कैन गिव सम टाइम। अभी तो खैर कोविड का सिचुएशन है तो ये तो बहुत ही लाइक डिफरेंट सिचुएशन है, इसमें तो अगेन जी जी डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशंस और मतलब केस टू केस बेसिस राइट। और नेगोशिएशंस कैसे करते हैं लोग। देखिए जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा तो ये फर्निश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्निश करने के पोजीशन में होते तो ये अपना हाँ लीज तो नहीं रेंटल से कर क्लियर कर हाँ देते। नहीं कर पाते तो कोई नहीं। हाँ अभी इसमें तो हम फंडिंग के लिए जब जाएंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो ऐसे भी बैंक को उससे मतलब नहीं कि आपके पास क्या आ गया क्या नहीं आया। बैंक को मतलब है कि आगे फ्यूचर में क्या आएगा और वो इनकम क्या होगी, और वो मेरे पास जो आएगा वो सीधा मेरे अकाउंट में आना चाहिए, मेरे एस्क्रो अकाउंट में आना चाहिए। जो फ्यूचर में जो आएगा उसी को वो कंसिडर करेंगे। फ्यूचर में जो आएगा, बट ठीक है। हाँ, अब जैसे मान अगर लीजिए सिक्योरिटी आज, डिपॉजिट आपके पास अभी नहीं कंसिडर किया हुआ, नहीं लिया हुआ है कुछ भी, जो फ्यूचर में जो आएगा वही उसको कंसिडर करना है उनको। हाँ जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरा लिया हुआ है, बट वो आज के डेट में खत्म हो गया। आज के डेट में मेरे बुक्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट है नहीं, क्योंकि मैंने जो इनके अप्रूव्ड लीज रेंटल्स थे उनके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर दिया। अब मैं अपने, मेरा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट चल रहा था, उसको मैं टेक ओवर करा रहा हूँ किसी दूसरे बैंक से। तो आज के डेट में तो मेरे बुक्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने सारा एडजस्ट कर रखा है। तो फिर क्या उस केस में एलिजिबिलिटी निकालते टाइम क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट कुछ लेस होगा, या क्या किसके इन कैसे दैट केस एलिजिबिलिटी? आपका आपके पास अगर अगर मान लीजिए कि रेंट अग्रीमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा हुआ था, अगर क्लाइंट ने वो एडजस्ट किया तो कुछ आपकी उसमें मेल से एक्सचेंज हुई होगी ना, कुछ लेटर वगैरह वो दे दे कि हमने सिक्योरिटी हाँ डिपॉजिट हाँ, एडजस्ट वो कर तो लिया, डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ फिर होगा उसके बाद प्रॉपर। आप उसको जस्टिफाई कर दो। आप बोल दो कि हमारा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आगे फ्यूचर में माइनस होना ही नहीं है क्योंकि हमने हाँ, कोई ऑलरेडी इसको लाइबिलिटी है ही माइनस नहीं, कर दिया है। हाँ तो फिर आप नहीं कर सकते, आप जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको बैंक जस्टिफाई करना पड़ेगा ऑन प्रॉपर ग्राउंड्स। को। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैम जो मार्जिन है 45%, व्हाट कुड बी द लोएस्ट मार्जिन जो हम लोग प्रपोज कर सकते हैं उसमें? क्या नहीं, दिस इज नॉर्मली बैंक का तो 45% ही होता है। अब लोएस्ट तो क्या है कि अगर आप कुछ इससे नीचे करते हो तो वो वेवर में जाता है बैंक के इसमें। बैंक के उसमें वेवर नॉर्म में जाएगा, फिर वेवर के लिए जो भी उनकी अलग क्राइटेरिया होती है बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो ये भी 45% बैंक टू बैंक वेरी करता है या मैम फिक्स स्टैंडर्ड है? Mostly what I have seen in my experience, I have not seen more than 45% in any of the bank. But कहीं कहीं पे शायद 50% एक आध बैंक में है, I don't remember, but mostly 45% ही है जहां भी मैंने देखा है। हाँ, पीएसबी में है 55% है मैम। 55% वो एलिजिबिलिटी होगा, 45% मार्जिन होगा, ऐसे है आई थिंक। I'll have to recheck with them। चेक कर अच्छा, लीजिएगा इसके तो मैम ये जो आप कह रही थी कि इसमें एनपीवी वाले मेथड से हमने जो निकाला 92.32 जैसा स्क्रीन में दिख रहा है, और मार्जिन 45% लेस करने के बाद 72.8 सीआर का फिगर आ रहा है। नहीं, तो मार्जिन 72, एलिजिबिलिटी इज 85.98 सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये मार्जिन है। दिस इज अ मार्जिन 45% है ये। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, मार्जिन लेस करने के बाद एक अमाउंट इसके अंदर में आ रहा 85 है, करोड़ आया मेरा इसके 85 मेथड। करोड़ आ रहा है, राइट। तो अपने अगर ग्रॉस रेंटल इनकम से, ग्रॉस रेंटल इनकम वाले मेथड से देखें तो ये तो एनी डे इट विल बी लोअर देन एज कंपेयर्ड टू नहीं, द एनपीवी हमेशा ऐसा वैल्यू। नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत बार मैंने देखा कि डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सपोज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% चार्ज कर रहे हैं बैंक या तो उस केस 11% में चार्ज, एनपीवी वाला कम हो जाएगा। हाँ अच्छा, ठीक। आपका लोन एलिजिबिलिटी वाले इसमें ज्यादा आ जाता है। और अगर टेन्योर आप बढ़ाएंगे ना, इसके अंदर मैंने ये भी देखा है कि अगर टेन्योर जैसे जैसे बढ़ता है तो आपका ये नीचे वाले मेथड से लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। एनपीवी में तो क्या स्टैंडर्ड वो चलता है, बट टेन्योर वाले में आपका वो बढ़ जाता है क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें स्केलेशन चार्ज करते हो, अगर 12 के बदले अगर मैं सपोज ये 15 साल कर दूं तो आप देखना कि लोन एलिजिबिलिटी लोअर वाले मेथड से ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मोर और लेस समझ में आ गया? हेलो, Yes, ma'am. Yes. हाँ जी मैम, ये क्लियर। I think people may just confirm. हाँ ठीक है, अभी जी नो मैम। इशू। So these are the key criteria for eligibility. एक इसमें मैं ऐड कर देती हूँ।
So this first 2-3 points are clear, that NPV of the rental and the other income. Yeah. Then rate of TDS. Then margin on NPV. Suppose बैंक says कि नहीं, जो भी NPV आ रहा है उस पे भी हम margin लेंगे. कोई बैंक 10% लेता है mostly, but कोई बैंक 15-20% भी NPV पे margin लेता है, but then it becomes very less. So we normally try to restrict to 10% margin on NPV if the bank wants some margin. Then security coverage. So normally here, like apart from your like primary security, that is lease rental income, which is there, that is your primary security. But from the property from which this lease rental is coming, respective that lease area that is being mortgaged to the bank, that is my collateral security. And that security coverage should be in the range of 1.2 to 1.5. That again depends from bank to bank. So normally in case of LRD, bank will never take any other security as a collateral security. Like suppose अगर जिस property से आपको rental income आ रही है, and you say कि वो वाले property तो हम आपको mortgage नहीं कर सकते, we will mortgage you some other property of the equivalent market value, then bank will not take that. They say that जिस property को आप मुझे आपसे rental income जिसको मुझे दे रहे हो, उस property को mortgage करना जरूरी है मुझे. And जो मार्केट जो वैल्यू निकालते हैं बैंक, इसमें वैल्यूएशन जो होती है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से होती है, बट बैंक इंसिस्ट ऑन द ओवरऑल लाइक प्रोजेक्ट्स की जो मार्केट वैल्यू है, जो स्क्वायर फीट के बेसिस पे व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट आल्सो दे वांट. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेनेंट्स प्रोफाइल. हाउ गुड इज योर टेनेंट, बिकॉज जो बैंक का लोन है वो तो टेनेंट से ही आएगा पैसा और उसके बाद उनका रिपेमेंट होगा. बट अगर टेनेंट ही डिफॉल्ट कर देते हैं और टेनेंट से पैसा ही नहीं आ पा रहा है तो बैंक का कोई लोन डिफॉल्ट हो जाएगा. सो नॉर्मली दे चेक द टेनेंट्स प्रोफाइल. अगर वही कोई सपोज कोई TCS, IBM इस टाइप के बड़े बड़े अच्छे MNCs होते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ फिर तो ठीक है. दे आर वेरी कीन ऑन डूइंग दोस काइंड ऑफ लोन्स वेयर द प्रोफाइल ऑफ द टेनेंट इज वेरी गुड. देन नंबर ऑफ टेनेंट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर. सपोज की पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही टेनेंट है, सो समटाइम्स जैसे कि अगर एक ही टेनेंट है और वो चला गया तो हमारा पूरा ही मतलब लोन फिर तो NP हो जाएगा, बिकॉज पूरी की जीरो रेंटल इनकम हो जाएगी. बट अगर डाइवर्सिफाइड है और टेनेंट्स अलग अलग हैं, 5, 6, 10 अलग अलग टाइप के टेनेंट्स हैं, तो फिर ठीक है. देन माय रिस्क इज नॉट दैट हाई, बिकॉज अगर एक टेनेंट भी जाता है तो कम से कम बाकी तो हैं. अनदर थिंग इज दैट फिट आउट्स. जैसे फॉर एग्जांपल कितनी बार ऐसा होता है कि जब कोई टेनेंट आता है तो वो कहता है कि भाई फिट आउट आप करके दे दो और आप जो भी फिट आउट कर दोगे हम बस आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, हम आपको फिट आउट जितना आपने किया है उसको उसके अगेंस्ट वी विल पे यू. बट समटाइम्स मतलब वो जब टेनेंट आता है वो खुद अपना ही उसमें फिट आउट कराता है, सारा डिजाइनिंग वगैरह सारी कुछ वो खुद कराता है. तो अगर उसने खुद का कराया हुआ है तो लोग सोचते हैं कि भाई नेचुरली ये 3 साल के बाद छोड़ के नहीं जाएगा या तुरंत छोड़ के नहीं जाएगा. तो फिट आउट हैज बीन डन बाय द टेनेंट और बाय द मतलब की लेसर. दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर. देन अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज दैट ऑल द लीज एग्रीमेंट्स जो है हमारे, जो मैंने बताया था कि बैंक इंसिस्ट की रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो उसकी वैलिडिटी ज्यादा है, लीगली वैलिडिटी है, उसको कोर्ट में चैलेंजेस हो सकते हैं. और लीज एग्रीमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है. लीज एग्रीमेंट पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि लीज एग्रीमेंट में क्या क्लॉजेस हैं, क्या क्लॉजेस टर्मिनेशन के हैं और कितने साल का लीज पीरियड है, कब से लीज कमेंसमेंट डेट है, लीज टर्मिनेशन डेट क्या है, रिन्यूअल के क्या क्लॉजेस हैं, रेसिडुअल टेनर क्या बचा हुआ है लीज पीरियड का. तो वी हैव टू स्टडी द लीज एग्रीमेंट प्रॉपर्ली इन डिटेल्स, वन एंड लाइक ईच एंड एवरी लाइन. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? मैम नंबर ऑफ टेनेंट्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं थोड़ा सा? नंबर ऑफ टेनेंट जैसे मैंने बताया था कि अगर एक ही टेनेंट है सपोज और वो टेनेंट फिर अगर बाय चांस वो चला जाता है, टेनेंट एक ही टेनेंट है तो जाता, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हुआ. अगर जैसे सपोज मेरे पास अगर एक के बदले 4 टेनेंट 5 टेनेंट है तो एक टेनेंट जाता तो एटलीस्ट 4 से तो रेंट आ रही है. नहीं, लेकिन अगर टेनेंट का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लाइक IBM है, IBM ने पूरा बिल्डिंग ही ले लिया मेरा. हाँ, तो इन दैट केस थोड़ा वो फिर वो है कि ठीक है, अगर इन दैट केस अगर टेनेंट का प्रोफाइल बहुत अच्छा है और टेनेंट एक है, थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोफाइल होने से फिर दैट विल मिटिगेट दिस रिस्क. टेनेंट प्रोफाइल का जो अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो दैट विल मिटिगेट दिस रिस्क.
तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा होगा? जितने ज्यादा होंगे तो अच्छा होगा, बहुत ज्यादा भी होने से मुश्किल हो जाती है, लेकिन एक थोड़ा सा ज्यादा होंगे तो अच्छा होगा। यस, थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, लेकिन हाँ इतना भी कि 100-150 हाँ, हो कि जाए, मैनेज करना मुश्किल हो जाए। कि मैनेज करना, डॉक्यूमेंटेशन ही अपने आप में चैलेंज हो जाए। हाँ हाँ हाँ। तो सिक्योरिटी कवरेज में जैसे हम लोग बाकी उसमें करते हैं, जैसे जैसे मेरा लोन रिड्यूस होता रहेगा तो मेरा पार्टली सिक्योरिटी रिलीज होता रहेगा क्या? नहीं, लोन रिड्यूस होगा तो लोन रिड्यूस हो रहा है, बट आपका जो लीज्ड एरिया है, नॉर्मली आई विल जस्ट शेयर अनदर टर्म्स एंड कंडीशंस वाली, 1 सेकेंड। कैन यू सी दिस? हाँ जी। सो बेसिकली ये भी मैं डिस्कस करूंगी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस इसके अंदर होती है। नाउ यू आर आस्किंग समथिंग कि नहीं, हमारा जो सिक्योरिटी है, व्हाट सिक्योरिटी व्हिच वी हैव गिवन इज, वन इज द रेंटल इनकम, दैट इज माय प्राइमरी सिक्योरिटी व्हिच इज कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया, and that particular area is being charged to the bank. कॉल कैसे ठीक है, होगा? तो जब तक आप उसका रेंटल इनकम ले रहे हो, 10 बजे कॉल है यार, बात कर ले यार। चीफ सेक्रेटरी के साथ कॉल है, ऐसे मत कर यार भाई, उनकी सरदर्दी है। अरे नहीं मेरे भाई, तू भी एक बारी बात करना उसको कि क्या कर रहे हो भाई। तो इसका जब तक, हाँ नहीं, जब तक इसका रेंटल इनकम आप ले रहे हो तब तक वो एरिया बैंक के साथ मॉर्गेज रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोन अमाउंट। सो नॉर्मली जैसे बैंक कभी कभी पूरी की पूरी, सपोज पूरी बिल्डिंग्स में से सिर्फ 5 फ्लोर से रेंट आ रहा है, तो बैंक कैन, इट डिपेंड्स अगेन, बैंक कैन टेक द कंप्लीट बिल्डिंग एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल, और समटाइम्स you can insist कि नहीं, I will give you only this 4 floors from where the rent is coming, I will mortgage only those particular floors. So that again depends on your negotiation and other things. So basically ये जो लोन होता है इसके अंदर ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लोन दिया जाता है। तो दैट एंड यूज इज कि भाई आप मतलब गैम्बलिंग वगैरह में नहीं लगाओगे। अदर देन दैट अगर बिजनेस पर्पस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लोन दिया गया है, नॉर्मली जो मैंने बताया कि ROI is like 9% plus minus depending on the tenant profile, depending on the property, borrower's rating. और नॉर्मली ये जो टेनर होता है वो 10 to 15 years का नॉर्मली होता है। ये लॉन्ग पीरियड लोन है। सिक्योरिटी मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि प्राइमरी सिक्योरिटी इज माय रेंटल इनकम, एंड कोलैटरल में हमारा जो है फर्स्ट चार्ज जो है पूरा ऑन द रेस्पेक्टिव लीज्ड एरिया। मैम जो ROI होता है वो फुल टेन्योर के लिए फिक्स रहता है या फिर वो MCLR प्लस 1 ईयर और 5 ईयर? MCLR प्लस स्प्रेड होता है, तो MCLR अगर आपका चेंज होता है तो MCLR के हिसाब से उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं तो MCLR भी इसमें फिक्स रहता है या फिर उसमें भी वो वेरिएबल? MCLR इज 1 year MCLR, तो आपका जिस दिन सैंक्शन हुआ उसके 1 साल के बाद आपका MCLR रीसेट होगा। 1 year MCLR के हिसाब से वो चेंज होगा। ठीक है, DSCR के अंदर ज्यादा कोई मतलब इंपॉर्टेंट मैटर है नहीं, बिकॉज इसके अंदर जितना भी रेंटल इनकम आता है दैट इज कमिंग टू द बैंक्स एस्क्रो अकाउंट, एंड आफ्टर दैट बैंक का जो भी ये रिपेमेंट है, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, वो पे हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली बैंक ये देखता है कि जितना रेंटल इनकम आ रही है उनके पास, उसका एटलीस्ट 90-92% से ज्यादा ना हो रिपेमेंट EMI एंड प्रिंसिपल का। तो DSCR इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.1 के बीच में रहता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्जिन दैट दे हैव टेकन ऑन द NPV। मैम जैसे हम लोग लैंड वैल्यूएशन या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग क्या लीज वैल्यूएशन भी करते हैं कि ये जो लीज रेंटल एग्रीमेंट उसने एंटर किया है वो अंडर वैल्यू तो नहीं है? ऐसा कुछ होता है क्या बैंक की तरफ से? नहीं, वैसा कुछ नहीं होता। लीज अंडर वैल्यू है कि नहीं, वो नॉर्मली वैसे कुछ नहीं होता, बट अगर आपका अग्रीमेंट है और साइंड है और रजिस्टर्ड है तो उस पे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो इसमें कोई डाउट, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो। तो सॉरी मैम, इसमें फिर एक तरीके से अगर मुझे लोन एलिजिबिलिटी बढ़ानी है तो डेवलपर तो एक तरीके से अपना उसको ओवर वैल्यू करके भी वो कर सकता है मैम लोन लेने के लिए? नहीं, लोन एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए द ओनली वे यू कैन, अगर आप बोल रहे हो कि अग्रीमेंट में, लोन एग्रीमेंट, राइट, लोन एग्रीमेंट में अगर आप बोल रहे हो कि कोई भी, लेकिन लोन एग्रीमेंट अगर आपने रजिस्टर्ड कराया हुआ है
और अगर उसने ज्यादा पे अगर उसने साइन किया हुआ, सपोज कि वहां का मार्केट रेट 85 है और आपने 100 रुपीज पे लोन एग्रीमेंट लिया, बट वो थर्ड पार्टी क्यों उस पे एक्स्ट्रा उसको एडिशनल पे वो रजिस्टर्ड लीज होती है तो उसमें उनको स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है उसके लिए जितना रेंटल इनकम होता है। बैंक क्या सिर्फ जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स है उन्हीं को कंसीडर करेगा या नोटराइज्ड एग्रीमेंट्स को भी कंसीडर करते हैं? वो मोस्टली तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को ही कंसीडर करते हैं। नोटराइज में क्या डिफरेंस हो जाता है, मतलब वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैम नोटराइज में आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना होता, आपको सिर्फ एक तरीके से वही 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करना होता है, उसमें आपको नोटराइज तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ ना, वो तो एक नॉर्मल एग्रीमेंट हो गया ना। सर रजिस्टर्ड को ही कंसीडर करते हैं, नोटराइज को कंसीडर वैसे स्पेसिफिकली नहीं करते। अच्छा मैडम, जब हम बोलते हैं ये जनरल पर्पस ऑफ द लोन, जनरल कॉर्पोरेट, व्हिच मीन जो हमने लोन लिया है एलआरडी के थ्रू, कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस. It can be used for development any other project, or it can be used for repayment of any existing loan. Yeah, it can be used. Yes. It can be used. Only thing is कि gambling कुछ restriction है कि gambling में नहीं कर सकते। I think तीन exceptions हैं। एक आप शायद जो नॉर्मली आप बैंक्स में देखेंगे कि आप जो मैम कह रही थी कि लॉटरी वगैरह के लिए आप नहीं कर सकते हैं, कुछ केस में आप लैंड नहीं खरीद सकते हैं, कुछ इस तरह के 3 रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आप के लिए बहुत वैसे नहीं है रिस्ट्रिक्शन ऐसा। तो मैंने सैंक्शनिंग के टाइम पे जस्टिफाई करना रहता है कि ये पर्पस किस पर्पस के लिए यूज करेंगे। बैंक मांग लेता है सैंक्शन के समय कि फिर भी आप मुझे मोटा मोटी आप बता दो कि आप ये पैसा कहाँ यूज करोगे, भले ही वो उतना उसके लिए स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब बाद में वो नहीं करता, स्ट्रिक्ट नहीं होता कि नहीं आपको हर चीज के लिए बताएंगे तभी मैं रिलीज करूंगा फंड, बट वो इन जनरल एक मांग लेता है कि आप ये पैसा कहाँ यूज करोगे, आप थोड़ा सा कहीं पे अमाउंट वाइज आप बता दो। मेरा खाली समझना ये था, जैसे अपने लोग अगर क्रेडिट मॉनिटरिंग के हिसाब से समझते हैं, ओके, दैट इफ समवन एलआरडी हैज बीन सैंक्शन्ड, तो इन सब लोन के लिए मेरे ख्याल से क्रेडिट मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करते होंगे बैंक? नहीं करते, मोस्टली नहीं करते। जो मेरी बात हुई है जहाँ भी जैसे कहीं कहीं पे बड़े बड़े जैसे 600, 650, 1000 करोड़ के लोन है, बट वहां पे मैंने बात की थी, वो लोग बोल रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है। अगर करते हैं तभी करते हैं जब रेंटल इनकम एकदम मतलब उनका एस्क्रो अकाउंट में इनकम आ ही नहीं रही है रेंटल इनकम, तो उसमें वो थोड़ा सा कर लेते हैं कि भाई इनफ्लो आउटफ्लो बता दो कि कैसे कितना टाइम लग रहा है, कितना गैप आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। अगर बहुत सारे टेनेंट्स हैं और रेंटल इनकम टाइम पे नहीं आ रही एकदम, तो थोड़ा बहुत इनफ्लो को वो देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए करवा सकते हैं, बट नॉर्मली नहीं करवाते। और मैम क्या प्रमोटर इससे अपना पैसा निकाल सकता है क्या, इस पैसे से? हाँ, इसमें से मोस्टली वो निकालते हैं एक्चुअली, ये मतलब हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने देखा कि एलआरडी वाले अगर सपोज आपने एसपीवी में कोई प्रोजेक्ट है और कंपनी में एलआरडी काफी सालों से चला आ रहा है, तो आप उसकी बैलेंस शीट उठा के देखना, इसके अंदर एक ये बड़ा इश्यू होता है कि उनका जो TOL by TNW वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बिकॉज उसके अंदर में प्रॉब्लम यही आती है कि आपने एसेट साइड में तो आपका वो आ गई, बिल्डिंग आ गई, सारी आ गई, अब लायबिलिटी साइड में खाली उसके अगेंस्ट में वो ये एलआरडी लोन ही खड़ा होता है जी, तो TOL by TNW हमेशा हाई होता है काफी, क्योंकि वो अपने जितने भी उनके जो अपने सपोज उन्होंने अपनी पैसे से बनाया होगा तो वो अपना ले जाते हैं, एडवांसेस वगैरह जितना आया था बैंक उसमें, या इक्विटी का जितना भी अनसिक्योर्ड लोन आया था वो सारा चला जाता है, तो केवल इक्विटी रह जाती है उसके अंदर जो निकल नहीं सकती। जी। तो इसके अंदर एक दो चीज और बता देती हूँ कि ऐसे आपको अभी मैं किसी से और से पूछना चाहती हूँ कि वेदर एलआरडी का लोन टेक ओवर लोन है या नहीं है। सपोज कि एलआरडी का लोन अगर एक बैंक ने अभी करा हुआ है सैंक्शन, अब मैं दूसरे बैंक के पास में जा रही हूँ, तो आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है दूसरे बैंक में शिफ्ट कराने का लोन को? एक तो ये, प्लस ये टेक ओवर नॉर्म्स में आएगा कि नहीं आएगा, इसमें टेन्योर चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई बता सकता है? डेट के अलावा कोई पहले बता सकता है, पहले डेट टीम के अलावा, फिर मैं डेट टीम से। टेन्योर तो आपका जो जनरली होता है वो आपके लीज एग्रीमेंट के बेसिस पे डिपेंडेंट नहीं, रहता है। सपोज कि अभी मेरा एग्जिस्टिंग बैंक के साथ चल रहा है ये एलआरडी का लोन, उसमें मेरा अभी टेन्योर, अभी रिमेनिंग टेन्योर 10 साल का मैंने लोन सैंक्शन कराया था, अभी 6 साल बचा हुआ है। अब मैं दूसरे बैंक के पास जा सकती हूँ 6 साल 12 साल के लोन के लिए? नहीं, 12 साल के लिए तो नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास वो लीज एग्रीमेंट आप छोड़ दो, आप लीज एग्रीमेंट समझ लो कि वो उसके लिए बैंक रेडी है उसको ऑटो रिन्यूअल के लिए। हाँ, तो आई गेस वो अग्री है कि उसको मान लेंगे कि हम वो आगे तक कंटिन्यू होता जाएगा। तो आपको अगर बेटर आरओआई दे रहा है अगर वो, तो आप
डेफिनेटली वेदर आई एम सेइंग टेक्निकली जा सकते हो क्या? टेक्निकली तो मतलब बैंक गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि अगर आपका टेक ओवर में आप टेन्योर चेंज नहीं हो सकता, एग्जिस्टिंग टेन्योर लोन का। तो ये मैं बता देती हूँ, ये एलआरडी के अंदर एक बहुत ये अच्छी मतलब बड़ी चीज है जो कि बाकी हर लोन से डिफरेंट है। बेसिकली एलआरडी वाले लोन में नॉर्मली अगर कोई भी आप लोन अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में आप शिफ्ट कराते हो और अगर टेन्योर चेंज होता है तो रीस्ट्रक्चरिंग में वो काउंट हो जाता है। अगर आप टेन्योर पीरियड बढ़ा दिया, सपोज आपका लोन अगर 5 साल का अभी बचा हुआ है और आपने किसी और बैंक से वो लोन शिफ्ट करा के उसको 12 साल का कर दिया, तो नॉर्मली लोन रीस्ट्रक्चरिंग में काउंट होता है। बट ओनली इन केस ऑफ एलआरडी, अगर आप लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट कराते हैं तो वो रीस्ट्रक्चरिंग में काउंट नहीं होता, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसमें आप टॉपअप भी दे सकते हो। जैसे पहले अगर 50 करोड़ का लोन बचा हुआ था आउटस्टैंडिंग, तो आप उसमें बैंक दूसरा बैंक उसमें टॉपअप दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द, अगर लोन एलिजिबिलिटी आपकी 100 करोड़ की बनती है तो वो 100 करोड़ देगा, 50 करोड़ पुराने बैंक को जाएगा और 50 करोड़ क्लाइंट को मिलेगा, और वो इंक्रीज कर सकता है टेन्योर भी। तो इसके अंदर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत बार, जब नए कुछ बैंकर्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं या सपोज वो पूरा रिस्ट्रक्चरिंग वाली गाइडलाइन और टेक ओवर वाली गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, तो हमें उनको बहुत समझाना पड़ता है कि ये सर एलआरडी है, एलआरडी के अंदर में ये नहीं है, बाकी आपकी टेक ओवर की हर एक अदर नॉर्म्स को कंप्लाई करना पड़ता है। इन दिस केस टेक ओवर की जो दूसरी नॉर्म्स होती है वो हमें कंप्लाई करना पड़ता है, जैसे सिक्योरिटी है, मेनली सिक्योरिटी वाला नॉर्म्स है, या कुछ और भी अगर उसके अंदर है तो वो हमें टेक ओवर नॉर्म्स कंप्लाई करना पड़ता है। बट इसके अंदर हमें टेन्योर के लिए और टॉपअप अमाउंट जो हमारा होता है लोन अमाउंट, इस चीज के लिए हमारे को इसमें वो मतलब इसमें एलआरडी वाले लोन में रिस्ट्रक्चरिंग में काउंट नहीं होता। तो ये क्लियर है? मैम एक इसमें थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, इसमें जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बैंक सिर्फ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को वो करता है, तो फॉर एग्जांपल जब हम एमपीवी निकालते हैं, जब प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो उस टाइम जरूरी नहीं है कि मेरा 100% की सारा जो एरिया है वो ऑक्यूपाइड हो। तो हम लोग मान लें फॉर एग्जांपल मेरा 1 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है और मेरा जब मैं लोन लेने जा रहा हूँ तो मेरा सिर्फ 25,000-30,000 स्क्वायर फीट मेरा ऑक्यूपाइड है, और आई एम अ डेवलपर, तो मैं मतलब प्रोजेक्शन करके उसको दिखाता हूँ कि मेरा 3 साल में 2 साल में मेरा 100% ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं उससे आज ही एलआरडी के लिए अमाउंट मांगता हूँ। नहीं, लेकिन नॉर्मली बैंक देता नहीं है आजकल। पहले बहुत पहले मैंने एक बार करवाया हुआ है हम लोगों ने, अभी नहीं, अराउंड 5 years बैक, कि उसमें हमने ऐसा करवाया हुआ था कि इतना एरिया है, आज के दिन ही मुझे आप इसी आज का जो रेंटल इनकम आ रहा है उसी के बेसिस से ही आप सैंक्शन कर दो, आप बाद में डिस्बर्समेंट कर देना। उन्होंने करा भी था, सिंडिकेट बैंक ने किया था हमें, कि हमें मतलब कि आज के दिन इतना हमारा लीड से इतनी इनकम आज के दिन आ रही है और फ्यूचर में अभी हमारा इतना और हो जाएगा, तो इस हिसाब से आज से सैंक्शन कर दीजिए, एज एंड व्हेन जब होगा तब आप मुझे डिसबर्समेंट कर देना। और उन्होंने किया था। बट आज के दिन इन टुडे सिनेरियो लास्ट 2-3 ईयर से कोई बैंक नहीं उसके लिए अग्री करता है कि मैं आज ही सैंक्शन कर दूं आपको। वो बोलता है कि जब होगा तो आप मुझे दे दीजिएगा, तब मैं कर दूंगा। नहीं तो उसमें जैसे आज के दिन तो लीज एरिया उसी कंसीडर करेंगे वो। ओके, तो जैसे जैसे मेरा एरिया बढ़ता जाएगा तो मैं उसके लिए तो आप फिर उसको प्रेजेंट कर सकते हो। अगर मान लो सपोज कि आपका बढ़ गया कुछ एरिया और 2-3 लाख स्क्वायर फीट 4 लाख स्क्वायर फीट बढ़ गया है, तो आप फिर उसको बोल सकते हैं कि भाई ये वाला बढ़ गया, इसके अगेंस्ट मुझे और भी इस तरह से कैलकुलेशन करके, फिर वो जल्दी हो जाता है। वो आप लेकिन उसमें आपके पास लिमिटेशन है कि आप उसी बैंकर के पास रहोगे, क्योंकि आपकी जो बिल्डिंग है उसी बैंकर को मॉर्गेज डिपेंड करता है। अगर आपने पूरी की पूरी बिल्डिंग मॉर्गेज की है तो आप बैंक उसी बैंक के पास जाना पड़ेगा। बट अगर सपोज कि आपने कुछ फ्लोर वाइज मॉर्गेज किया और आपका वो फ्लोर खाली है जिसको आपने मॉर्गेज नहीं करा है, जिसमें से अभी आ रहा है बाद में आ रहा है रेंटल, तो आप दूसरे बैंक के पास भी जा सकते हैं। या फिर दूसरे बैंक के पास जाएंगे तो पारी पासू चार्ज या फिर उसके लिए पारी पासू नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या होगा कि सिक्योरिटी ट्रस्टी के थ्रू होता है। अगर सपोज कि एक ही पेपर बिल्डिंग के एक ही लैंड टाइटल डीड है, एक ही पेपर उसका सारा कुछ एक ही, तो वो सिक्योरिटी ट्रस्टी के पास होता है। और जो बैंक अभी एग्जिस्टिंग बैंक है उसके पास फ्लोर वाइज चार्ज क्रिएट होते हैं, तो पारी पासू की जरूरत नहीं होती इसमें। फ्लोर वाइज उसके पास हो जाएगा, उस फ्लोर का दूसरे के पास हो जाएगा। ओके, ठीक है। और इसके अंदर एक तो मैंने ये बताया था कि रीस्ट्रक्चरिंग या टेक ओवर वाला बहुत इश्यूज आता है, उसके अंदर बैंक्स को बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है कि भाई ये रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं काउंट होगा, आप टेन्योर चेंज कर सकते हो। देन इसके अंदर एक ये प्रॉब्लम आती है कि एक तो सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत इशू आता है, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट तो यही चाहता है कि हमारा अगर पूरी बिल्डिंग है और अगर 10 फ्लोर हैं
और अभी 5 ही फ्लोर रेंट आ रहा, तो और 5 ही फ्लोर मॉर्गेज हो बैंक के पास, 5 फ्लोर और नहीं हो मॉर्गेज, तो सिक्योरिटी, और ये नॉर्मली हर मतलब कि ये हर एलआरडी लोन में कुछ ना कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आ ही जाती है। लेकिन उस केस में भी बैंक को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई कैसे सिक्योरिटी ट्रस्टी के थ्रू आपका चार्ज हो जाएगा, आपका प्रॉपर चार्ज रहेगा, और आपका मतलब कि कोई डाइल्यूट नहीं हो रहा है सिक्योरिटी, बिकॉज बैंक को ये इंसिस्ट करते हैं कि मुझे पूरी बिल्डिंग मिल जाए, मुझे क्लियर रहे। तो थोड़ा सा वो भी एक प्रॉब्लम आती है समझाने में बहुत, सिक्योरिटी ट्रस्टी के थ्रू कैसे कैसे चार्ज क्लियर होगा। तो एक कैम इनकम आप इंक्लूड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब एक पॉइंट होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि कैम इनकम के लिए यू हैव टू जस्टिफाई कि इफ यू आर टेकिंग दैट मच ऑफ कैम इनकम परसेंटेज, व्हाई यू आर टेकिंग। अगर जस्टिफाई हो जाता तो वो ले लेते हैं। कितनी बार किसी बैंक में रूल है कि दे विल नॉट टेक कैम इनकम। देन अनदर जो इश्यू आता है दैट इज ऑटो रिन्यूअल वाला, जो मैंने बताया कि मोस्टली एलआरडी के लोन का क्या होता है कि अगर आपने एक बैंक से 12 साल का किया, आज के दिन आपकी 100 करोड़ की एलिजिबिलिटी आ रही है, 5 साल के बाद आप फिर दूसरे फिर बैंक के पास जाते हो, क्योंकि फिर वापस आपका फिर 12 साल की एलिजिबिलिटी वो चेक करेगा, तो आपको फिर से 100 करोड़ मिलेगा। अभी 100 करोड़ में से आपने 50 पे कर दिया है, तो आप चाहते हो कि फिर मेरे को 100 मिल जाए। तो ये एलआरडी का लोन एक बैंक से दूसरे बैंक से तीसरे बैंक बहुत मतलब जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अंदर कभी भी जो आपके पास हमारे पास जो लोन के प्रपोजल्स आते हैं उसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि मोस्ट हार्डली होता है कि आपकी जो लीज टेन्योर, जो रिमेनिंग लीज टेन्योर है वो 12 साल की है या 10 साल की है, या जितना आप लोन प्रपोज कर रहे हैं उतने साल की है। नॉर्मली वो हमेशा 5, 6, 7 साल की बचती है, और हम 12, 13 साल, 15 साल का लोन प्रपोज करते हैं। तो इस इन दैट केस हमें बहुत उसमें भी बैंक को काफी कन्विंस करना पड़ता है कि क्यों हम कंसिडर कर रहे हैं, व्हाई वी आर सेइंग कि नहीं हमारा क्यों लोन ये जैसे क्यों हमारा ये अग्रीमेंट रिन्यू हो जाएगा। उसके अंदर हमारी बहुत सारी आर्गुमेंट्स होती है, लोकेशन क्या है, हमारा रेंट पर स्क्वायर फीट क्या है, हमारी मतलब बॉर्वर की बिल्डिंग लीजिंग कैपेसिटी है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और अगर एसीजेड में है तो एसीजेड के अंदर इतने सारे अदर बेनिफिट्स हैं जो कि उसको नहीं मिलेंगे, आसपास में एसीजेड बिल्डिंग नहीं है, या उसने इतना एरिया मॉर्गेज कर रखा है, उसने अपना फिट आउट लगा रखा है, तो वो नहीं जाएगा। और एनीवे अगर पीरियड अगर एक इसके अंदर एक चीज, हाँ, तो ये ऑटो रिन्यूअल वाला पॉइंट भी एक होता है जो हमें ध्यान रखना होता है कि कैसे वो होगा जस्टिफाई, वो प्रॉपरली जस्टिफाई करना होता है हमें प्रपोजल में। देन टेनेंट्स प्रोफाइल, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था। तो टेनेंट प्रोफाइल जैसे कोई भी लीज का प्रपोजल अगर हम बना रहे हैं, एलआरडी का प्रपोजल बना रहे हैं, तो उसके प्रपोजल में हमारी टेनेंट्स की प्रोफाइल जरूर मेंशन होनी चाहिए। हर टेनेंट के बारे में कुछ मतलब एक एक पैरा, दो पैरा, जो जितना हम पता कर सकते हैं वो होना चाहिए उसके ऊपर। देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस भी जरूर करना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर कितनी बार ऐसा होता है कि हमने कैम इनकम ले लिया और हमने देखा ही नहीं, हमने अपने मन से बस 20% मान लिया कि वो बचेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखो तो वो बच ही नहीं रहा जरा सा भी, तो वो जस्टिफाई कर लेना चाहिए। और जैसे मैंने बताया था कि इस केस में क्योंकि TOL बाई TNW हाई होता है, तो बैंक हमेशा बोलता है कि आपका तो ये बहुत ज्यादा हाई है तो रेटिंग खराब हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें समझाना होता है कि ये लोन जो है LRD का लोन है, दिस इज अ सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। इसके अंदर आपका पैसा अपने आप ये रिपे हो रहा है, ये TOL बाई TNW इसके अंदर में इतना रेलिवेंट नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। रेखा जी, हम लोगों के जितने भी लोन्स होते हैं उसमें इंश्योरेंस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, बट इससे इंश्योरेंस का कुछ डिफरेंट होता है क्या? मतलब उसका इम्पोर्टेंस कितना रहता है? नहीं, इंश्योरेंस तो हर एक में, जो भी बिल्डिंग आप इसके अंदर है, जो आप मॉर्गेज कर रहे हो बैंक को, जिसमें से रेंटल इनकम आ रहा है, इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ता है, उसका इंश्योरेंस मस्ट है। इस केस में इंश्योरेंस जो है उसमें द लेंडर इज नेम लॉस पे ही रहेगा, उसका ही लेंडर का ही नाम रहेगा लॉस पे में। हाँ। नहीं, मतलब इसमें जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कुछ लिमिटेड इंश्योरेंस करा लेते हैं अपना प्रीमियम बचाने के लिए, तो बैंकर की तरफ से इसमें आता है कि आपको मतलब 100% कवरेज लेना है इसमें। जैसे वो बोलते हैं कि मार्केट वैल्यू जो भी आपने दिखाई भी है ना, उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, लेना पड़ता है। बैंक अपने कंडीशन में, सैंक्शन टर्म्स में किस तरह से लिख रहा है उस वर्ड को ना, उस पर भी डिपेंड करता है, बट वो लेना पड़ता है। वो इंश्योरेंस का चेक तो करते ही है वो डिस्बर्समेंट के पहले। तो जनरली तो बैंक अपने पास से खुद ही कराता है ना मैम, या फिर क्लाइंट के ऊपर? या बैंक अपने पास से खुद नहीं कराता है, बैंक तो चेक कर लेता है खाली कि आपका हुआ है कि नहीं प्रॉपर्ली।
ओके इससे भी हाँ। तो एनी डाउट, एनी किसी को डेट वाले में से भी किसी को कुछ लग रहा डाउट, और बाकी किसी को कुछ समझने में डाउट लग रहा है तो एनी क्वेश्चन? Is it possible कि एक फ्लोर पर because I have seen one case where एक फ्लोर पर दो टेनेंट्स हैं, या एक फ्लोर अभी मैं आधा भी होते हैं, 3 भी हो जाते हैं कितनी बार। यस, आधा कवर्ड है और आधा नहीं, अभी टेनेंट अभी लीज्ड आउट नहीं है। हाँ ठीक है। तो उस केस में आपको क्या चैलेंजेस मिले हैं? केस में चैलेंजेस ये होता है कि बैंक फिर ये बोलता है कि आप मुझे मतलब आधा आधा करके आप मुझे मॉर्गेज नहीं कर सकते हो। आप ठीक है, आप आधा रेंटल इनकम, आप उसमें रेंटल इनकम तो वो कंसीडर करेंगे हाफ ही, लेकिन वो नॉर्मली वो फ्लोर वाइज मॉर्गेज करना चाहते हैं। एटलीस्ट दे डोंट वांट टू मॉर्गेज लाइक एरिया की आधा एरिया मैं मॉर्गेज कर लूं और आधा एरिया छोड़ दूं, बिकॉज बोले कि डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। और उसमें भी लेकिन हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि नहीं मैप में डिमार्केटेड है। अगर बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता है तब तो हमें करना पड़ता है, बट अगर छोटा छोटा एरिया होता है तो फिर हम उनको फ्लोर वाइज मतलब करना पड़ जाता है। मैम व्हाट अबाउट द कॉमन एरिया? समटाइम्स नो कैफेटेरिया, पार्किंग स्पेसेस एक्सेट्रा, दे आर इनटू द कॉमन एरिया, दो दे हैव बीन अलॉटेड एंड दे आर मार्क्ड, बट देयर इज अ डिफिकल्टी इन दैट केस। तो उनको रेस्पेक्टिवली एरिया अनडिवाइडेड पोर्शन पे जो प्रोपोर्शनेट चार्ज वैसे। अच्छा, अनडिवाइडेड पोर्शन। लेकिन जो कैफेटेरिया वगैरह होते हैं सर, वो जनरली रेंटल पे ही होते हैं, तो वो भी उसका रेंटल इनकम में ही कंसीडर होता है, तो उसके एक तरीके से कभी कभी हाँ रेंटल इनकम पे है तो वो फिर तो अलग से रेंटल इनकम में ही आ गया। और अगर बाई चांस वो जस्ट कॉमन एमिनिटीज के हिसाब से दिया हुआ है, सपोज कॉमन एमिनिटीज है, तो फिर वो अनडिवाइडेड वाला उसके हिसाब से। नहीं, अगर मैम इसके अंदर अगर मान लीजिए कार पार्किंग, बिकॉज इट बिकम वेरी वेरिएबल, तो वो कंसीडर किया जाएगा क्या? ये कार पार्किंग आप देखोगे ना लीज कार अग्रीमेंट, नॉर्मली कार पार्किंग में मेंशन होती है उसके अंदर कि कितनी फ्री कार पार्किंग देंगे और कितना चार्ज्ड कार पार्किंग देंगे, तो वो उस हिसाब से डिवाइड हो चार्ज वाले जो तो वो कंसीडर मतलब किया जाता है चार्ज वाले जो कार पार्किंग का जो तो वो उस हिसाब से उतना कार पार्किंग भी आ जाता है उसके पास, बैंक के पास भी, जितना वो उसको मतलब फ्री और चार्ज वाला दे रहे हैं। रेखा जी एक चीज और इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करो कि जैसे हम लोग जब लोन एलिजिबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ रेंटल इनकम ले रहे हैं, लेकिन एक बिल्डिंग में क्योंकि टाइम टू टाइम थोड़ा सा रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कराना पड़ता है और आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होता है, तो उसके आउटफ्लो को क्यों नहीं कंसिडर करते हम लोग? नहीं एक्चुअली जो मेजर रिपेयर मेंटेनेंस तो बहुत होता नहीं, क्योंकि इसके अंदर बिल्डिंग के अंदर मोस्टली जो इक्विपमेंट्स और ये सारा तो वो टेनेंट्स खुद ही लगाता है। जैसे मान लो फिट आउट्स होता है वो सारा टेनेंट्स खुद ही लगाता है, अंदर का जितना भी है, या तो वो लगाता है या क्लाइंट से भी लगवाता है, तो खुद उसके पैसे देते हैं। तो ये बेयर शेल बिल्डिंग होती है नॉर्मली, वार्म शेल बिल्डिंग्स को बोलते हैं। इसके अंदर बहुत रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत होती नहीं है ओवरऑल बिल्डिंग के अंदर। नहीं, लेकिन जो कॉमन जो कॉमन मेंटेनेंस इनकम जो हम ले रहे हैं बेसिकली बिल्डिंग की मेंटेनेंस तो कैम इनकम से हो जाती है। कैम इनकम जो आती है उसी से हो जाती है। अच्छा, तो उसी में वो सारा मेंटेनेंस है। लेकिन मेजर मेंटेनेंस का मतलब आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा स्कोप होता नहीं है उसमें, क्योंकि जो कैम से होती है वो रेगुलर मेंटेनेंस होती है, वो रेगुलर ही होती है, बट बहुत बड़ी मेंटेनेंस इस बिल्डिंग में वैसे रिक्वायर नहीं होती 10-12 साल के अंदर, 13 साल के अंदर। नहीं, वो तो 10-12 साल में नहीं है, लेकिन आप जब भी जा रहे हो उसमें एक तरीके से नहीं, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा नहीं किसी में बहुत कोई बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हुआ हो बैलेंस शीट के अंदर। ओके, नहीं मतलब हुआ नहीं है, लेकिन होने हुआ के नहीं है। अगर आपको आगे में कुछ थोड़ा बहुत डालना है बैलेंस शीट में आप डाल सकते हो, क्योंकि एनीवे बैंक तो 90% मोस्टली कंसीडर करता है, 10% तो बचता ही है ना क्लाइंट के पास तो थोड़ा, क्योंकि एक तरीके अदर इनकम भी आती है जो कि बैंक कंसीडर करते तो वो भी बच जाता है। हाँ, क्योंकि इस केस में मतलब एक तरीके से कोई एक नई बिल्डिंग है और एक कोई मान लो 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो दोनों के एक तरीके से कैश फ्लो और वो सारा कुछ सेम, मतलब दोनों बराबर में बिल्डिंग है तो दोनों के लिए बराबर लोन हो गया, उसका नया पुराना होने का कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। हाँ नहीं, उसके अंदर भी वही है कि अगर मतलब थोड़ा जो हमारा अगर आप प्रोजेक्शंस में आप डाल सकते हो इन दैट केस, अगर बहुत पुरानी बिल्डिंग है तो थोड़ा सा रिपेयर मेंटेनेंस में, बट वो हमारा रेंटल इनकम का जो लोन एलिजिबिलिटी निकालते हैं उसमें माइनस नहीं होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 10% मार्जिन, या हम जो मार्जिन ले रहे हैं अलग से एनपीवी के ऊपर 10% मार्जिन ले रहे हैं, और हमारे पास जो अदर इनकम जिसे जो हमने कंसिडर नहीं करी है अभी लोन एलिजिबिलिटी में, उससे हमारा हो जाएगा।
उतना आपको जो बैलेंस शीट के जो प्रोजेक्शंस बनाएंगे तो उसमें उतना इनफ्लो आउटफ्लो में आपका वो अगर कवर हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मतलब बैंकर नहीं पूछता आपसे कि आपकी 40 साल पुरानी बिल्डिंग है या नई बिल्डिंग है, तो उसमें ऐसा पूछना नहीं है, कभी कभी डिपेंड करता है, कोई हल्का सा पूछ भी सकता है कि आपने कुछ लिया है क्या मेंटेनेंस का, तो आप लोन एलिजिबिलिटी में से नहीं हटाते हो, बट आप अलग से बैलेंस शीट में दिखा सकते हो उसको, कुछ उसमें कुछ लगना है तो रिपेयर मेंटेनेंस कुछ आप डाल सकते हो, अगर आप कैश फ्लो बच रहा है तो आप डाल सकते हो उसमें, कैश फ्लो थोड़ा बचता ही, ऐसा नहीं है। तो कोई और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है? अगर अदरवाइज आई थिंक बेसिकली ये छोटा सा ही टॉपिक था। एलआरडी एक टर्म लोन है जो कि एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट है बैंक का। तो एलआरडी के लोन हम लोगों ने काफी सारे करवाए आप हैं। थोड़ा सा चैलेंजेस कुछ बताइए जो आपके मैंने ये चैलेंजेस बताया था, एक तो सिक्योरिटी वाला कि एक सिक्योरिटी का चैलेंजेस आता है इसके अंदर में। जी जी जी। तो क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग मॉर्गेज नहीं है और पूरी बिल्डिंग लीज नहीं है, तो अगर हम हाफ करते तो सिक्योरिटी का चैलेंज आ जाता है। एक चैलेंज आ जाता है कि कैम इनकम वगैरह जो है उसके ऊपर बहुत जस्टिफाई करना पड़ता है बैंक को कि आप कैम इनकम को ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो। प्लस ऑटो रिन्यूएबल वाला, आई एम सॉरी, कैम इनकम के केस में आई थिंक जो विनीत अभी बात कर रहे थे ना मैम, पर्टिकुलरली बिल्डिंग में ना भी रिपेयर मेंटेनेंस ना हो ना इतना, लेकिन जैसे अपने एयर कंडीशनर प्लांट्स लगा रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं सारी बिल्डिंग नॉर्मली बोलते हैं, HAVC बोलते हैं सर। इनका जो मैम मेंटेनेंस है आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के मेंटेनेंस है, क्योंकि ये ना हर 5 साल बाद या 7 साल बाद वो आई थिंक उसमें वो टेनेंट से ही लेते हैं, वो खुद से उसको बेयर नहीं करते उसका कॉस्ट। टेनेंट से कैसे ले सकता हूँ? तो कॉमन मेंटेनेंस इनकम में वो बिल्ड इन रहता है थोड़ा। ओके। और वैसे कुछ मेजर बता रहे हैं, कुछ खर्चा वैसे बिल्डिंग कुछ आया तो उनका ऐसा नहीं कि एकदम से ही कैश फ्लो जो है कि जितना आया उतना बैंक को चला, बैंक के पास जाने के बाद जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकल गया उसके बाद उनको वापस मिलता ही है वहां पे। तो वो हम बैलेंस शीट में आप प्रोजेक्शन आप दिखा दो, बट नॉर्मली हम दिखाते नहीं। जैसे आप कैम इनकम की बात कर रहे थे, मैं कैम इनकम से थोड़ा सा मैं ये कह रहा था, यदि कैम इनकम रहती है तो उसका हर 5 साल बाद या 7 साल बाद एक स्पाइक दिखाना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से वो रहता है ना, एग्रीमेंट होता है, मेंटेनेंस एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर में रहता है वो क्लॉज बिल्ट इन की आपका एस्केलेशन होगा 3 साल के बाद 15% आपका। लेकिन कैम इनकम जो जनरली होता है मैम, वो एक नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए होता है, डे टू डे मेंटेनेंस के लिए ही होता है। जो आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस होता है प्लस आपका जो भी उसका मेंटेनेंस सर्विस चार्जेस होते हैं, जो भी सर्विस एजेंसी है उसके ऊपर बस वो 12% 15% अपना सर्विस चार्ज ऐड करके एक्चुअल बेसिस पे देते हैं। वो उसमें कोई मार्जिन नहीं होता आपका कि आपका 10 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्चा आ रहा है और आप 15 रुपए स्क्वायर फीट उससे चार्ज कर रहे हो, ऐसा तो ये तो नहीं। एक्चुअल बेसिस पे आप हमेशा इतना हर चीज को कैलकुलेट नहीं करते, तो आप एक एवरेज ले लेते हो कि भाई 15 रुपए का आप एग्रीमेंट तो फर्स्ट दिन बना लेते हो कि 18 रुपए का एग्रीमेंट हो गया मेरा कैम्प के लिए, मोटा मोटी इतना एक्चुअल के ऊपर से होगा। बट जब आप एक्चुअली जब स्पेंड करते हो तो आपका उसमें 10, 15, 20% कितनी बार बच जाता है। तो अगर बचता है तो ही हम लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। नहीं, वो तो लेने वाली ठीक बात है मैम, लेकिन बैंकर तो ये क्वेश्चन कई बार करता है ना उस चीज के लिए। हाँ, तो वो आपको जस्टिफाई, आपका आवाज नहीं आ रहा मैम। अगर सपोज कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, अब आई है, बीच में आवाज चली कट गई थी मैम, सॉरी। इंटरनेट का लास्ट सेंटेंस यदि आप रिपीट कर लें। मैंने कहा था कि फिट आउट का इनकम भी एक होता है जो हम कंसीडर कभी कभी कर सकते हैं। जैसे सपोज कि आपका जो लेसर है उसने पूरा बना दिया है फिट आउट्स और वो 9 साल में उसको देना है टेनेंट को, उसके लिए भी उसने अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो दैट अगर उसमें ऑलरेडी खर्चा तो हो ही चुका है पहले ही, अब उसका खाली इनकम आना है, इनफ्लो आना है, तो दैट इनफ्लो ऑल्सो यू कैन कंसिडर। कार पार्किंग इनकम भी इसमें कभी कभी हम कंसिडर करते हैं। तो ऐसे कुछ है कि हम कार पार्किंग है, फिट आउट है, कैम है, रेंटल इनकम, ये सब कंसिडर हो सकती है जितना आप कर सकते हो। बट फिर डिपेंड करता है, बैंक कभी कभी बोलता है नहीं ये सब छोटे छोटे इनकम आप हटा दो, थोड़ा सा मतलब सरप्लस होना चाहिए, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई तो। एक इसके अंदर मैंने, हाँ बताइए प्लीज आप पहले कंटिन्यू करिए फिर मैं क्वेश्चन। नहीं, मैं दूसरा पॉइंट बता रही थी। मैं इसमें ये कह रहा था मैम, कल कोई केस आपने कराओ या आपके नॉलेज में हो जहाँ पर रीपेमेंट के ऊपर कोई मॉरेटोरियम दिया गया हो? नहीं, इसके अंदर ना रीपेमेंट के ऊपर मॉरेटोरियम नहीं होता एक्चुअली। हाँ, मैंने रीपेमेंट वाला पॉइंट उस समय स्किप हो गया था। रीपेमेंट के ऊपर कोई मॉरेटोरियम वैसे नहीं होता है। बट ये क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा रेंटल इनकम तो आप बैंक के एस्क्रो अकाउंट में जा रहे हो, तो पहले तो आपकी इंटरेस्ट सर्विस होगी,
जितना भी आपका होगा वो तो इंटरेस्ट सर्विस होगी, अगर बचेगा तो प्रिंसिपल सर्विस होगी। तो जैसे ईएमआईज में कैसे होता है कि आप ईएमआईज में तो इक्वल होता है, इसके अंदर इक्वल नहीं होता, बट इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट है कि मंथली आप दे रहे हो तो पहले इंटरेस्ट का पोर्शन सर्व होगा, बचेगा तो प्रिंसिपल जाएगा, तो एक तरह से बलूनिंग रिपेमेंट होती है। तो वो जैसे जैसे आपका कैश फ्लो अलाउ करेगा वैसे वैसे रिपेमेंट प्रिंसिपल की बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और इंटरेस्ट का पोर्शन कम होता है। उसके साथ वही 90% मान लीजिए हमने एग्री करा है मैम, मैं जस्ट समझने, क्योंकि रीपेमेंट का आप कह रहे हैं कि डिफरेंस रहेगा, डेफिनेटली रहेगा ही, क्योंकि इंटरेस्ट शुरू में ज्यादा रहेगा, एंड एज द लोन गोज डाउन द इंटरेस्ट पोर्शन कम होता रहेगा, लाइक प्रैक्टिकली लाइक ईएमआई। नाउ हाउ आई विल डिसाइड कि इसका इतना पोर्शन कैश इसको रिलीज करना है। जैसा अभी हमने 90% फॉर एग्जांपल हमने 10% मार्जिन रखा, ठीक है, शुरू में जब आपने एनपीवी के ऊपर 10% मार्जिन रखा, अब जब हम पे करेंगे एक्चुअल, तो मेरे पास 100 रुपए, मेरे पास 100 रुपए मेरा रेंट आया, उस 100 रुपए में से मान लीजिए मेरे को 60 रुपए मेरा इंटरेस्ट चला गया। अब नहीं तो हमारा वो ये बन के शुरू में ही जाता है, जब हमारा हम बना लेते हैं रिपेमेंट शेड्यूल पूरा मंथली शुरू में ही हमारा बन के चला जाता है एक्सेल। ये हर मंथ में डिसाइड नहीं होता, इन द बिगिनिंग ओनली। अगर सपोज कि आपका 12 साल का लोन है तो 144 मंथ्स का रिपेमेंट शेड्यूल बन के जाता है। मैम जैसे एक नया क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आपने बोला कि टेनेंट का प्रोफाइल मैटर करता है एलआरडी में, तो क्या लेसी का भी प्रोफाइल मैटर करता है क्या उसमें? लेसी का प्रोफाइल इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, पर फिर भी रेटिंग वगैरह के लिए तो देखते ही ना। अगर मान लो कि अगर उनकी क्रेडिट एक्सटर्नल रेटिंग कैसी है, क्या है, अगर वो अच्छी है तो उसका फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फर्क पड़ता होगा। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के फर्क पड़ जाता है, बट टेनेंट के प्रोफाइल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बोरोवर का मतलब प्रोफाइल ओके ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ अगर इश्यूज होते हैं, जैसे सपोज कि जो मैंने बताया कि चैलेंजेस अगर आते हैं कुछ, तो उस टाइम पे फिर आपका मतलब बोरोवर के प्रोफाइल का भी। तो इन दैट केस मैम क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक बोरोवर एनपीए है लेकिन उसकी एक बिल्डिंग है जो टेनेंट्स अच्छे हैं उसमें, तो क्या उसको अलर्ट हो सकता है? नहीं, एनपीए वाले अकाउंट को नहीं उसमें तो टेनेंट सारा अच्छा है, मेरे पास आईबीएम है, मेरे पास नहीं करेंगे वो। फिर वही है कि थोड़ा तो मतलब कि मान लो कि 70% वेटेज अगर टेनेंट का, तो 30% वेटेज तो है, एकदम जीरो नहीं है वेटेज। सर इसके अंदर में विनीत जी आपने जो क्वेश्चन पूछा था, इसके अंदर में शायद मैं अपना एक व्यू शेयर करना चाहूंगा। रेखा जी प्लीज रेक्टिफाई अगर कुछ गलत रहा तो। कि अगर ऐसा है कि अगर आपका अकाउंट एनपीए है और आपके पास कोई ऐसी बिल्डिंग है जो आपने लीज पे दे रखा है और उसमें काफी अच्छे टेनेंट्स हैं, तो उससे अगर पैसा आपके पास में रेगुलरली अगर आपके पास कैश फ्लोज आ रहे हैं उससे, तो आप तो उसको पहले दे करके अपने अकाउंट को स्टैंडर्ड करोगे ना, जो एनपीए है। नहीं, अगर वो बिल्डिंग उसके पास मॉर्गेज नहीं है, उसका जो पर्पस है वो तो फिर मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, जो अपने पहले डिस्कस करे थे, जो रेखा जी ने बताया। वो कह रहे हैं कि सपोज जैसे एक केस में बताती हूँ, आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास पार्श्वनाथ का आया था पहले। पार्श्वनाथ का जो था उसके अंदर तो खैर एक्चुअली लोन अमाउंट भी बहुत ज्यादा था। हाँ, लोन अमाउंट भी बहुत ज्यादा, बट उसके अंदर भी यही था कि अगर एनपीए है अकाउंट, तो ये भी होता है ना कितनी बार कि वो प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज नहीं है, दूसरी प्रॉपर्टी है। लेकिन मेरा पॉइंट आई थिंक इसमें पॉइंट ये है कि देखिए आपके पास 4 एसपीवीज है, 4 एसपीवीज में एक एसपीवी मेरी एनपीए है, ठीक है ना। और हम बहुत बार क्या होता है स्ट्रेटेजिकली भी करते हैं कि हम उसको एसपीवी में हम ये देख रहे हैं कि इतना हम पे नहीं कर सकते, इसीलिए एसपीवी क्रिएट करी गई थी। रिस्क एलोकेशन तो करा है ना मैंने। अब उस अकाउंट को नहीं बचाना चाहता क्योंकि किसी भी रीजन से व्हाई शुड आई पुट माय इक्विटी इफ आई एम अनएबल टू रिकवर दैट मनी। लेकिन मेरा दूसरा एसपीवी है जो कि प्रॉफिटेबल है, जिसमें मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। यू विल फाइंड लॉट ऑफ बिजनेस हाउसेस व्हिच आर हैविंग दीस एसपीवीज जस्ट फॉर हैविंग अ रिस्क एलोकेशन। दे विल लाइक नाउ माय पॉइंट व्हाट जो डायरेक्टर कॉमन है, तो उस केस में तो उसको भी एनपी कंसीडर करते हैं। दिस इज व्हाट Viniji was asking. If we are having 2 SPVs in one SPV is an NPA, but the other account is regular and we are having we want to LRD in this case, whether we will be able to get or not get. And strategically we don't want to correct that NPA account strategically. That is again there are repercussions, but if we don't want to or we don't have the capacity to restore that account, then what happens? Whether we'll get LRD or not LRD. That is the point I think Vinit was trying to. Right.
नॉर्मली अगर अकाउंट एनपीए है तो फिर दूसरा ही अगर प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे टेनेंट्स तो भी बैंक थोड़ा हेजिटेट करता है। बैंक थोड़ा हेजिटेट करता है, राइट। हाँ, नहीं करते, मोस्टली नहीं करते। मैंने 1-2 केस देखा, नहीं किया था उसमें। मतलब आप कुछ डायरेक्टर्स का बैकग्राउंड चेक करोगे उसके अंदर में, जबकि अगर वो डायरेक्टर किसी दूसरे एसपीवी या किसी वो दूसरी तो कंपनी में स्टैंडर्ड जो इनका डायरेक्टरशिप होल्ड बैंक कर का रहा है है कि डायरेक्टर्स का देखेंगे कि एनपीए तो नहीं है, और वो जी, उसका मतलब रेटिंग क्या है। हाँ, तो कोई was I able to put the question correctly? हाँ, मतलब एडिशन था सर, मेरा एक जनरल था कि उसी कंपनी में हो जाए, आपने एसपीवी वाला ऐड कर दिया उसमें, तो मतलब तो अगर तो नहीं, वो मतलब नॉर्मली बैंक नहीं करता है उसको। तो मतलब तो सारा एक तरीके से टेनेंट भी अच्छा है मेरे पास, और लेकिन मेरा खुद का टेनेंट लेसी का प्रोफाइल खराब हो गया, तो मतलब अगर पूरा अगर एनपीए जैसा हो गया तो, अगर थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल में अगर है तो ठीक है, अगर एनपीए हो गया तो फिर मुश्किल। तो SMA 1 SMA 2 तक फंडिंग कर सकते हैं? हाँ, SMA 1-2 तक में कर देता है। जैसे उसमें भी कुछ लेंडर है जो कर देता है, कुछ नहीं भी करता है, डिपेंड करता है अगेन। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल बताती हूँ, एम्बियंस का जो है, एम्बियंस का कुछ हो जाता था कि अगर मतलब थोड़ा सा इधर उधर लोन, रियल एस्टेट कंपनीज है तो, लेकिन उसके 2-3 प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे थे मॉल के, तो वो बहुत मतलब करना कोशिश किया हम लोगों ने। वो मतलब बैंक में थोड़ा मुश्किल होता था। अगर SMA 1-2 भी अगर उनका पास्ट में भी, जैसे हर एक बैंक के साथ कुछ ना कुछ SMA 1-2 रहा है, तो वो बैंक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लेंडर जैसे प्राइवेट बैंक ने उनको कर दिया। मैम दूसरा इसका हमको रेटिंग करवाना पड़ता है कि जैसे बैंक लोन का रेटिंग नॉर्मली कॉर्पोरेट्स को करवाना पड़ता है, तो इन अकाउंट्स का लोन का रेटिंग हमको करवाना पड़ता है रेगुलरली? रेटिंग मतलब कि एक्सटर्नल, हाँ, वो रेटिंग हमें कराना पड़ता है। आफ्टर लाइक डिस्बर्समेंट, एट द टाइम ऑफ सैंक्शन वो कंडीशन डाल देते हैं कि 3 to 6 months के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड दे गिव, कि 6 महीने के अंदर आपको उसकी रेटिंग कराना पड़ता है। नॉर्मली क्या रेटिंग मिल जाता है? कभी आपने मतलब कोई ट्रिपल बी प्लस मिल जाता है। तो LRD केस में वो जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है BBB- उससे नीचे बैंक करते हैं BB+ पे या BB पे LRD? क्या नॉर्मली LRD वाले केसेस में जैसे मैंने देखा है कि अगर वो मतलब कि या तो रेटिंग होती नहीं है कंपनी की, रियल एस्टेट कंपनी होती है, उन्होंने रेटिंग कराई नहीं है, और तो हम लोग इस समय बोलते हैं कि आपको प्री डिस्बर्समेंट के बाद पोस्ट डिस्बर्समेंट कंडीशन होती है नॉर्मली, कि पोस्ट डिस्बर्समेंट आप 3 मंथ के बाद, 6 मंथ्स के बाद करा दीजिएगा। तो 6 मंथ्स के बाद अगर वो कराते हैं तो उसके बाद तो डिस्बर्समेंट तो पहले हो ही जाता है उनका। उसके बाद तो मतलब इन्वेस्टमेंट ग्रेड में होना मतलब मैंडेटरी नहीं है एक तरीके से LRD? सच नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सैंक्शन अगर उनका इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं होता है तो थोड़ा सा उसके ऊपर फिर वो आता है इश्यूज, लेकिन थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ता है। बट कब हम लोग नॉर्मली, हमारे पास जितने केसेस आते थे, या तो रेटिंग होती ही नहीं थी, क्लाइंट लेता ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग नहीं होती है तो, या तो रेटिंग होती ही नहीं थी, या फिर होती थी तो BBB होती थी। क्योंकि लिमिटेड बिल्डर्स ही हैं मैम जो आजकल BBB- में आते हैं, अदरवाइज सारे BB+। हाँ, तो नॉर्मली वो रेटिंग कराते ही नहीं है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स। तो उस केस में मैम बैंक इंटरनल रेटिंग के बेसिस पे भी तो कॉल लेता होगा? हाँ, बैंक इंटरनल रेटिंग, बट LRD के लोन में वो नॉर्मली वो होता है कि उनका टेनेंट है और बाकी चीजें हैं, सब चीज को देखते हुए वो लोग इंटरनल रेटिंग पे ही कॉल लेते हैं। एक मैं इसमें ये बोल रही थी कि इसके अंदर, हाँ, एक टर्म्स एंड कंडीशंस में वो रह गया था कि एक डेसरा वाला भी पॉइंट होता है। इसमें नॉर्मली हमें जो डेसरा रखना पड़ता है 3 months का नॉर्मली हम प्रपोज करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर टेनेंट अगर लग रहा है कि ज्यादा अच्छा नहीं है तो कभी कभी 6 months का डेसरा भी, या टेनर आपका बहुत कम है, तो डिपेंडिंग ऑन द लाइक, अगर बहुत ज्यादा अगर बैंक इंसिस्ट कर रहा है तो अगर क्लाइंट रेडी है तो वी कैन प्रपोज 6 months का डेसरा। इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग बोलते हैं कि अगर चलो क्लाइंट टेनेंट चला गया तो हमारे पास 6 महीने का तो टाइम है, 6 महीने का तो आपके पास डेसरा दिया हुआ है, 6 महीने में तब तक कोई दूसरा नया टेनेंट ढूंढ लेंगे, आ जाएगा। तो डेसरा मैम बोरोवर को अपने इंटरनल सोर्सेज से लाना होता है या वो लोन अमाउंट में से डिडक्ट करके मेंटेन करते हैं? नहीं, वो नॉर्मली डेसरा बिल्ड करना पड़ता है, तो नॉर्मली तो हम लोग इसमें यही चाहते हैं और यही कोशिश करते हैं कि लोन अमाउंट से, कभी कभी तो बैंक इंसिस्ट करता है कि नहीं, लोन अमाउंट जो है अपफ्रंट, जैसे सपोज कि आपका 100 crore डिस्बर्स कर रहे हैं तो उसमें से ही डेसरा बिल्ड कर देंगे, और कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं कि हमें 3-6 महीने का टाइम दे दो, जो सरप्लस 10% जो बच रहा है और जो अदर इनकम्स आ रही उससे हम बिल्ट इन कर देंगे
3 months के मतलब अंदर। पैसा आपको अपफ्रंट नहीं करना, उसके लिए हम लोगों को टाइम पीरियड मिल जाता हाँ है। टाइम पीरियड दे दीजिए, तो दोनों डिपेंड करता है आप कैसे आप मतलब निगोशिएट कर दो। तो डायट्रा में जो हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो हम लोगों को एफडी वाला ही मिलता होगा, तो 3-4% का उसमें भी लॉस रहता है मैम। वो थोड़ा लॉस होता है, उपाय नहीं उसका, क्योंकि एक तो हम उनको ये भी बोलते हैं कि भाई आप जो पीरियड है उसे ज्यादा कंसिडर कर लीजिए आप लोन का अमाउंट। हाँ, तो मतलब उसने खुद का ही लोन दिया 9% में मुझे और खुद के पास ही रख लिया 6% पे, तो 3% तो बिना किसी रिस्क लॉस तो वही, लेकिन बैंक के लिए भी तो रिस्क है ना कि आपका लीज पीरियड है जो कि लॉक इन पीरियड होता है। लीज पीरियड के अंदर एक चीज और मैं बता देती हूँ, लीज पीरियड में आप देखोगे ना तो लीज पीरियड नॉर्मली डिवाइडेड होता है। जैसे अगर 12 साल का भी टेन्योर है लीज का, तो नॉर्मली मैंने देखा है कि जैसे वो 4+4+4 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें आप पूरी लीज एग्रीमेंट पढ़ोगे तो 4 साल का सपोज उसमें लॉक इन पीरियड एक डिफाइन होता है कि ये तो लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड में रेंटल मतलब रेंट देना ही देना है अगर वो छोड़ के भी जाता है तो। लॉक इन पीरियड के बाद में आपका अगर टेन्योर अगर 12 साल का भी है तो 4+4+4, इसका मतलब ये हो गया कि 4 इयर्स का तो लॉक इन है मेरा, फिर उसके बाद 4 इयर्स के लिए फर्दर 4 इयर्स के लिए वो रिन्यू हो सकता है। दैट इज ऑप्शन 1, मतलब वो हो गया कि 4 इयर्स के लिए फर्दर रिन्यू हो जाएगा दोनों के म्यूचुअल से कंसेंट से, और फिर अनदर 4 इयर्स के लिए वो रिन्यू हो सकता है, मतलब 4+4+4। तो इस केस में फिर भी अगर वो 3 साल का लॉक इन चला गया तो भी हम 9 साल का बोलते हैं कि रिमेनिंग टेन्योर है। उस केस में मैम इसमें एक जो मैंडेटरी कंडीशन होना चाहिए वो ये होता है कि आपको फर्स्ट रिफ्यूजल ऑफ राइट होना चाहिए उसमें। किसको? जो टेनेंट है उसके पास फर्स्ट रिफ्यूजल ऑफ वो रहता ही है उसके अंदर। टेनेंट और टेनेंट अगर दोनों म्यूचुअली अग्री करके, वो तो अग्रीमेंट के ऊपर है कि दोनों कैसे डिजाइन करते हैं अपना अग्रीमेंट। बट आई एम सेइंग फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू कि बैंक जो कंसीडर करता है तो बैंक काफी रिस्क, मतलब बैंक के पास ऐसा नहीं कि एकदम ये रिस्क फ्री प्रपोजल है। बिकॉज अगर आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, लॉक इन पीरियड के बाद 6 महीने की नोटिस देके कोई भी जा सकता है, जो भी इसमें लिखा हुआ 3 महीने की नोटिस या 6 महीने की नोटिस। तो अगर मेरा टेन्योर अगर 20 साल का भी है बट उसके अंदर 3 महीने की नोटिस पे कोई भी जा सकता है, तो खाली तो हो ही सकता है ना। हाँ नहीं वो तो है, लॉक इन के बाद तो कभी भी खाली कर सकते, कभी भी खाली हो सकता है। तो हमारा नॉर्मली टेन्योर जैसे अगर 15 साल का भी टेन्योर तो 5+5+5 होता है। तो लॉक इन पीरियड के बाद किसी भी समय खास, और वो 5+5+5 मतलब कि 5 ईयर के बाद फिर से वो रिन्यू करेंगे। हाँ जी, अग्रीमेंट फिर से रिन्यू होगा, तो वो रिस्क है। लेकिन फिर भी बैंक उतना रिस्क लेता है, वो मान के चलता है कि चलो अगर हिस्ट्री है, लोकेशन बहुत अच्छा है, तो इसके अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो खाली नहीं रहेगी, 5-6 महीने में कोई नया टेनेंट आ ही जाएगा, और आ ही जाता है। तो कभी कभी नहीं भी आता तो फिर अकाउंट एनपी भी होता है। तो मैम इसमें लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे भी कुछ डिफरेंस पड़ता है क्या? लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे नॉर्मली ये होता है कि किस टाइप की अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड राइट वो देंगे, तो उसका मतलब सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा उसका। हाँ नहीं, मैं बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ कि उसके लिए दोनों प्रोडक्ट सेम है या फिर वो अलग अलग चीजें उसमें कुछ। प्रोडक्ट सेम ही है, बट उसके अंदर सिक्योरिटी एंगल थोड़ा सा चेंज होगा कि उनको लीज होल्ड राइट देनी होगी, शेयर होल्डिंग शेयर्स प्लेस करने पड़ते हैं अगर वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करती। जैसे हमने एक प्रपोजल कराया था जो कि एसईजेड में थी, जो कि सेल ही नहीं होती, यू कांट सेल दिस प्रॉपर्टी। तो फिर बैंक अपना अगर कुछ डिफॉल्ट होता तो कैसे रिकवर करेगा इफ यू कांट सेल, इफ दे कांट सेल। इन दैट केस वो मतलब कि था कि शेयर्स 100% शेयर्स प्लेज करवाए थे। लेकिन 100% शेयर अगर मान लो उसी शेयर कंपनी होल्डिंग में आप चेंज कर सकते हो ना, पूरी की पूरी शेयर वो तो है, अगर बैंकर के और भी कुछ चल रहे हैं उस कंपनी में, पता है मुझे, करते हैं बात। ठीक कह रहे। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में तो मैम फिर ये भी होता होगा कि जिसमें जो लेजर है पर्टिकुलरली लाइक हुडा एक्सेट्रा, मतलब कई बार या डीडीए ये लोग कहते हैं कि दे सीक वी हैव टू सीक अप्रूवल फ्रॉम देम एज वेल टू क्रिएट चार्ज ऑन द राइट्स ऑफ द लीज। नहीं वो तो आफ्टर सैंक्शन वो लेना ही पड़ता है उनसे, नहीं पड़ता है ना। हाँ, बट उनका अगर बहुत कम मतलब अगर मेजर अमाउंट सारा पे हो चुका है, बहुत कम छोटा सा नॉमिनल अमाउंट जा रहा रेंटल, तो ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था मेरा इसके अंदर में, जो आपने लास्ट में डिस्कस करे कि 12 साल का अग्रीमेंट है तो वो 4+4+4 के शेप में है, तो हाँ हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ आ रही है। तो जैसे मान लीजिए 12 साल का अग्रीमेंट है तो 4+4+4 के शेप में है। तो पहला 4 साल तो लॉक इन पीरियड का निकल गया, उसके बाद फिर एट द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इट कैन बी रिन्यूड फॉर अनदर 4 इयर्स, और उसके बाद फिर फर्दर 4 इयर्स के लिए रिन्यू होगा।
तो मान लीजिए ऑन द लैप्स ऑफ दिस 12 इयर्स, क्या उसके बाद क्या सेम टेनेंट वो वहाँ पे स्टिल मतलब उसके साथ में एग्रीमेंट रिन्यू हो सकता है क्या? ही विल हैव टू रिन्यू तो हो सकता है, डिपेंड्स, मतलब अगर टेनेंट चाहता हो रिन्यू करना और लेसी और लेसर दोनों अगर चाहते हैं तो रिन्यू हो जाए। मतलब ऐसा कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है कि 12 साल के कंप्लीशन के बाद उसको नहीं, वेकेट करना ही चेंज पड़ेगा? करना जरूरी नहीं है। मैम मुझे क्या सबलीज के लिए एलआरडी हो सकता है क्या? सब लीज के लिए जैसे एग्जैक्टली क्या मतलब? मान लो मैं फेसबुक हूँ, मैंने पूरा बिल्डिंग एक ले रखा है किसी भी डेवलपर से, उसके बाद मैं पूरा बिल्डिंग को खुद ऑपरेट ना करके उसको सबलीज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी को, तो मैं क्या उस सबलीज के अगेंस्ट में बैंक से फंड ले सकता हूँ गिविंग दी अनदर प्रॉपर्टी एज अ कोलैटरल? गिविंग अनदर प्रॉपर्टी एज अ कोलैटरल थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली जो वैसे मैं बताया था कि इसके अंदर में बैंक जो है जिस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम जिस प्रॉपर्टी से आ रही है उसी को ही वो लेते हैं एज अ सिक्योरिटी में, मतलब अदर देन दैट वो नहीं लेना चाहते क्योंकि उनका फिर कोई कंट्रोल नहीं रहता उस पर। नहीं मेरे तो मैंने पास तो देखा नहीं है वैसे, अगर बैंक मान जाए और बहुत अच्छा है तो कोई आप ट्राई कर सकते हो, बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस। ओके कि मतलब वही है कि मुझे तो मंथली पेमेंट देना है और अपना। आपके अग्रीमेंट में भी जैसे क्या क्या आपको कैसा है, हाँ इनफ्लो तो आपको आ रहा है, सही बात है, इनफ्लो आ रहा है आपके पास, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी के अगर उसके अगेंस्ट बैंक का कुछ उस मतलब उस एरिया पे कोई चार्ज नहीं रहा ना, मतलब खाली इनकम पे चार्ज रहा। हाँ क्योंकि वो चार्ज तो ऑलरेडी जो प्राइमरी और है उसके उसमें गया हुआ है वो चार्ज, तो उसके पास प्रॉपर्टी को चार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो मुश्किल है, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोई अगर कर भी सकता है तो हमने अभी ऐसा कुछ कभी केस नहीं देखा कि सबलीज। विनीत थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि बैंकर अगर रिस्क असेसमेंट करेगा तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मान ले अभी तूने एग्जांपल लिया फेसबुक जो है उसने रेंट पे लिया से तेरे से ही लिया मान ले, जी जी, यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट सर, अब तूने रेंट पे दे दिया फेसबुक को और फर्दर तूने उसको बोल दिया कि तुम रेंट पे दे सकते हो, राइट सर। अब एग्रीमेंट कैसा बना है, पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारा आपस में एग्रीमेंट कैसा बना है। राइट सर। अभी हम उसको नॉर्मल एग्रीमेंट मान लेते हैं जी, तो उसमें बैंक का सबसे बड़ा रिस्क क्या रहेगा कि इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी तुमने लीज कर दिया, तुमने कहीं से लोन ले लिया इस प्रॉपर्टी पे मॉर्टगेज करके, राइट सर। तो उसमें क्या है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फेसबुक के राइट्स भी ना इफेक्ट हो जाएंगे कलेक्शन के, तो कोई भी बैंक जो होगा वो थोड़ा सा ऐसी ट्रांजैक्शन से दूर ही भागना चाहेगा, जनरली स्पीकिंग दूर भागना चाहेगा, नॉट दैट कि लीगली नहीं हो सकता, लीगली हो सकता है, और जनरली जो एलआरडी की स्कीम्स भी बैंक्स की जो बनी होती है ना, जो इंटरनल सर्कुलर्स होते हैं उसके अंदर भी के थ्रू होता है, तो उसमें तो लिखा ही होता है कि सेम प्रॉपर्टी शुड बी मॉर्टगेज, तो वो पॉलिसी डेविएशन होगा, करेगा भी तो पॉलिसी डेविएशन के लिए फिर देन मुश्किल है, बहुत मुश्किल becomes difficult. It's not that it is not possible, theoretically it is possible, but on actual ground it will be very difficult. This is my observation. ओके, तो या फिर वो एलआरडी बोल के नहीं कर सकते हो, आप उसको लैप बोल के कुछ करवा सकते हो, जैसे मान लो कि आप कोई और प्रॉपर्टी दे दो, लैप बोल के आप करवा सकते हो, कोई और प्रॉपर्टी आपने दे दी, पर वो महंगा पैसा मिलेगा इसलिए बोल रहा है विनीत, करेक्ट, वो सस्ता पैसा नहीं मिलेगा, लैप हो सकता है, लैप हो सकता है, करेक्ट है, क्योंकि इनकम तो गारंटेड आ ही रही है ना मेरी, हाँ इनकम आ रही है और आप बिल्डिंग में मॉर्गेज आप दूसरी प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो आप लैप बोल करेक्ट है मैम। अच्छा मैम एक क्वेश्चन पूछना था मुझे आपसे, अभी कोई रीसेंट एक्सपीरियंस हमारा बैंकर्स में, मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि अभी जो करंट सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन है, तो उसमें क्या है कि बहुत से रेंट्स रीनेगोशिएट हो गए हैं और बहुत सी जगह रेंटल जा भी नहीं रहे हैं, मतलब तो बैंक्स का पर्सपेक्टिव कुछ चेंज हुआ है क्या इसके प्रति, एलआरडी के प्रति? अभी कि उन्होंने मार्जिन सोचा हो कि भैया मार्जिन मुझे थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए, ये इसके बारे में मुझे लग रहा है कि कुशन क्रिएट करना चाहिए बैंकर्स अगर को, कोई इसका आंसर लेके मुझे लग रहा है अभी ये लोग कर सकते हैं, जो अभी इधर में ना एलआरडी के प्रपोजल एक दो चल रहे हैं हमारे, विनीत कर रहे हैं कोई, आई थिंक अभी मेरा ज्यादा इस बारे में 2-3 बैंकों से अभी कोई करंट का प्रपोजल में बैंकर का पर्सपेक्टिव क्या आ रहा है वो जानना थोड़ा जरूरी है, अगर कोई लाइट थ्रो कर सकता है लाइन विनीत शर्मा। विनीत आप कॉल पे नहीं हो, एक मिनट आना।
एक मिनट, विनीत को मैंने बुला ही लिया, यहीं बैठा मेरे पास ही ऑफिस में। आप कॉल पे नहीं हो ना? 1-2 मिनट का आपको एक क्वेरी है, अगर आप सॉल्व कर सकते हो क्या? अगर फ्री हो तो आ जाओ। क्वेरी ये है कि अभी करंट में जो एलआरडी के आप कुछ प्रपोजल कर रहे हो शायद, तो बैंकर्स का कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है क्या एलआरडी को लेके करंट सिच पैंडेमिक के हिसाब से, कि एक्स्ट्रा कुशनिंग मांग रहे हो, एक्स्ट्रा मार्जिन मांग रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? अभी तो एलआरडी पे इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सबको लग रहा है कि रेंट रिवीजन हो रहा है। अच्छा, कैन यू गाइस कैन हियर विनीत? सर थोड़ा आवाज कम था, थोड़ा। अच्छा मैं बताता हूँ, विनीत मुझे बोलेगा, मैं बताता हूँ। विनीत ये कह रहे हैं कि अभी बैंक्स जो हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग एलआरडी, राइट, बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। अभी हर जगह पे रेट ऑफ जो रेंट का है वो रिवाइज होने के चांसेस सब जगह ज्यादा है, because bankers are saying that most of the places rents will be renegotiated, so they are not taking a call on LRD proposals. Right. This is the current situation. जैसे मॉल हो गए या कमर्शियल स्पेस हो गई, वहाँ पे जैसे कमर्शियल है वहाँ पे तो रेंट रिवाइज होने ही होने हैं, लेकिन सबको मालूम है कि रेंट रिलीज चल रही है सबकी, तो अभी बैंक होल्ड पे रखा होगा उन्होंने प्रपोजल को। Yes, so most of the proposals are on hold. Maybe they'll have more cushioning towards that which I discussed with you. That could be one of the possibilities. Extra margins, because they will see that most of the rents will be renegotiated. So अगर किसी का 100 रुपए का रेंट आ रहा है तो उन्हें लगता है कि 20-30% तो मार्केट करेक्शन ही आ जाएगा, तो कितना 25%. Vineet is saying bankers have estimated that around 25% rentals will be extra discounted, you can say. So we can start from 75. If the rental is 100, कर दिया उनको तो प्रॉब्लम हो गई, वो तो अलग चीज है, तो जिसने अब रिस्क ले लिया उसने ले लिया। थैंक यू विनीत। जी मैम, एनीथिंग एल्स? सर्कुलर है मैम, कोई आपकी नॉलेज में कोई सर्कुलर हो आरबीआई का एलआरडी के लिए कोई अलग से तो सर्कुलर नहीं देखा है कभी मैंने तो, बट बैंक का अपना सर्कुलर होता है कि एलिजिबिलिटी कैसे निकालनी है। मतलब नहीं एलआरडी के लिए नहीं, बैंक के लिए आरबीआई का कोई सर्कुलर इसमें एक्चुअली जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज जस्ट पार्ट ऑफ टर्म लोन, तो टर्म लोन की तरह है बस। आरबीआई का तो नहीं देखा कभी कुछ और अलग से एलआरडी स्पेसिफिक। Banks are free to do business. They are free to devise their own products. RBI does not enter into their lending as such. कि आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन नहीं कर सकते। Bankers are free to design products. It is a product. एग्जैक्टली प्रोडक्ट है, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे एलआरडी मतलब मैंने जैसे मेरा बेसिक क्वेश्चन कई बार क्यों था कि कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक केस के लिए कुछ कोई गाइडलाइंस आ जाती है, इसलिए मैं पूछा था जस्ट। नहीं अभी कोई है नहीं ऐसा कुछ है। हमारी नॉलेज में नहीं है, एटलीस्ट मेरी भी नहीं है मतलब। So shall we conclude, Rekha ma'am, or is there anything else? बस ठीक है, अब तो मुझे तो और आई थिंक आई हैव कवर्ड। अब कुछ अगर कभी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। So I don't think there is any doubt in anybody's mind. So we had a fantastic session, I must say, and thank you so much for conducting this session at a very short notice. I would say you were really prepared, and that is excellent. And आपको वैसे preparation की जरूरत ही नहीं. I think you are very thorough on the subject. That I but could. actually बस preparation जरूरत नहीं थी, बस वो थोड़ा सा slides बनानी थी, तो मैं बताया नहीं था, मुझे कुछ अर्जेंट कुछ काम से मैं आई वाज ऑन लीव यस्टरडे 2 दिन, मंडे ट्यूसडे। तो अरे मैंने बोला ना एक्सटेम्पोर आप बोल सकते हो, कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं मैं वो तो बोल सकती हूँ, बट मैंने बोला कि एक्सेल पे दिखाना जरूरी है। ठीक है, नहीं दैट इज वेरी गुड, क्योंकि प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव आने से थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता है, समझ में आ जाएगा कैसे होगा। यस यस यस। और दूसरी बात कि हम लोगों ने सोचा था कि ये शायद एक पार्ट टाइम टॉपिक है, लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट टाइम टॉपिक, इट इज नॉट एट ऑल अ पार्ट टाइम टॉपिक। पूरा समय ले लिया है और बहुत अच्छी बात है दैट अच्छा, आपको क्वेश्चंस ड्राफ्ट करने में किसी की हेल्प चाहिए क्या रेखा मैम, या आप खुद करेंगे? कोई कर देगा डेट टीम से तो 2-4 बेटर रहेगा ना। आप बता दीजिए, मतलब कोई भी 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देगा आपको।
मगर इसमें हमें मैं सोच रही हूँ खाली एलआरडी के टॉपिक पे 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कोई बात नहीं, पुराने टॉपिक्स में से क्वेश्चन ले लेंगे। आप 30 तो लाइएगा। हाँ, आप 25-30 तो लाइएगा, बाकी हम पुराने टॉपिक से ले लेंगे। टॉपिक्स है तो मैं डेट Even की टीम older से topics are important. राजेंद्र को करती हूँ। ओके, राजेंद्र एक नाम हो गया। और मनीष जोशी या आशीष को तो बॉम्बे की टीम में से कोई एक भी। मनीष, कैन यू हेल्प? मनीष, यू आर देयर? को लगता है मनीष है नहीं लाइन पे। आशीष, आशीष यू आर देयर? आशीष इज देयर। आशीष, आई विल डू सर। ओके, राजेंद्र ने तो हाँ कर दिया। हाँ, ठीक है। और विनीत शर्मा करेगा? विनीत कर देगा, विनीत कर देगा। मैं बोल देता हूँ, अभी पर्सनली पास ही बैठा है मेरे। और ये 3 हो गए। बॉम्बे से मैं आशीष या मनीष जोशी से आप बात कर लीजिएगा, मैम ऑफलाइन बात कर लीजिएगा, दोनों में से किसी से भी ले लीजिएगा आप। और बाकी 1-2 इधर अलग से सुनील गुप्ता जी करेंगे क्या आपने? हाँ, सुनील गुप्ता जी बिल्कुल, कभी ना नहीं करते किसी चीज को। कर दूंगा मैम। ही इज अ जेंटलमैन। ठीक है। आई थिंक और कोई को आप सजेस्ट कर सकते हो किसी को, तो बाकी तो आई थिंक ठीक है। और एक विनीत अभिषेक रुंगटा कैन डू दैट। अभिषेक टेट में ही था, तो मैं सोची थी कि अभी कोई दूसरे डिपार्टमेंट से कराना तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट से पुष्मिता मैम कर देंगे। पुष्मिता मैम को ठीक है। यस, पुष्मिता जी। यस सर। आप कर दीजिए मैम। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम का टॉपिक जो है दैट विल बी हैम या पावर सेक्टर के प्रपोजल। सुनील गुप्ता जी हैज वॉलंटियर्ड दैट ही कैन टेक पावर सेक्टर एंड ईसीबी इफ रिक्वायर्ड। तो मैं 2 चीजें ईसीबी तो सर, ईसीबी में पूरी क्लास हो जाएगी सर। ईसीबी अपने आप में कंप्लीट है सर। तो मैं आपका हाँ, ईसीबी का आप ले लेंगे। ईसीबी का बहुत पता भी नहीं है लोगों को ज्यादा पता नहीं है, तो आप ईसीबी लीजिए नेक्स्ट टाइम। चलिए, दैट विल बी बेटर। ठीक है सर, मैं ईसीबी वंडरफुल। और ये सुधीर जी, खाली मुझे एक था कि एलआरडी के ऊपर भी पूरा वो क्वेश्चंस कवर नहीं हुआ, तो आप उसमें फिर आप ऐड कर दीजिएगा कुछ और। अरे हो जाएंगे 50 क्वेश्चन, जो बचेंगे मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, हो जाएंगे 50 क्वेश्चन, डोंट वरी, हो जाए इजीली। अरे आपने 2 घंटे का सेशन ले लिया, पौने 1.5 घंटे का, 50 क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्या? इजीली बन जाए। सेशन में तो क्या कि पता है ना, इतने सारे इश्यूज क्या क्या आते रहते थे, कुछ। जी, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू रेखा मैम। बाय बाय। वेलकम, माय प्लेजर। बाय।